Yeah, hi, sure. Hi, Paresh. Good to see you, everybody. We'll wait for a couple more minutes and then we'll continue, okay? Because I see still people haven't joined. So I don't have any other option than waiting for them to join. Okay, all right. So good to see you guys. I'm really happy to have you all of you here. So let me know if you have any doubts, any queries, any questions. Hmm? We'll go through it first and then we'll come back to the topic of the day today. We have Aniket, Ishwar, Paresh. Only three people. Oh my God. We had total 9, 10 people. I don't know what is happening. Okay, I'll prefer to wait for 3 more minutes, and if not, we will continue. Okay. Today we want to see the microservices part. Okay, the most awaited and the most important question when it comes to the interviews. Okay, so this will be really helpful or really powerful when you're going to mention this thing into your interview. Like I have built microservice based application, and you will see the change in the questions. This is essential. Over the next few days, we will also see the types of patterns that we have in microservices. It will also be really great point to look at. I don't know why other people have not joined, but anyways, it'll take a while, and in next 2 minutes we'll get started. We have Kausarja joined. Anaga is here. Okay, yes, guys. I request everybody to be on the time going forward. Do not miss out on any session. This is very, very important thing that we are taking a look at now. Okay, we are going to build the project from scratch. So I want you to open your Eclipse by the time. Open your IntelliJ or Eclipse, whatever you are using. And also open your Postman so that we will, once I start programming, you will be able to do it along with me. That's the thing. Make sure you have everything ready. Okay, once you opened, let me know opened into the chat. Yes, quick. Into the chat, type in O once you open your Eclipse or IntelliJ, whatever you have. Today, we are starting with microservices. Yes, Kausar. New project. No, we'll create a new project, Aniket. We'll use existing project as one of the microservices in our new projects, but we will be creating three new projects. But it is not like our previous project is not required. It will be needed going forward with all our future applications or future updates. So make sure you have it up and running as well. Not today immediately, but tomorrow we may need it to integrate. Hmm? ठीक है, people are not joining, so I will not wait more time. So I request everybody to join on time. Say, I have heard a very important thing which I'll tell you, and which has changed the way I have been working. Like, being on time is not on
actually 8:30. Like if 8:30 is time, so if you join at 8:30, it doesn't mean that you're on time. So being on time is always like 5 or 10 minutes before they're in the meeting to join that meeting. That is something called as being on time. Okay, right? So when you have to join the session around 8:30, you're supposed to be there live, ready with your laptop and everything set up, just waiting to join as soon as the meeting starts, right? So that is something called as being on time, is joining 5 minutes early. Okay, so make sure you have this habit. Do not fall for this thing, like, as soon as the session will start, I will join at 8:30, 8:31, and then that is not the right way of doing it. I recommend not to fall for this sort of thing. We have been brought up like in India. That is why people hate India. Like we don't follow the time. No, it's not. You start with yours, and then things will automatically start happening good. Do not be late for any of the session going forward. Okay, that's a recommendation. And ultimately, I'll leave the choice up to you. You guys are grown up. You guys know what is right, what is wrong. So make sure that you join on time exactly and be there every time. Okay, all right. With this, let's begin. I'm sharing my screen. So we are going to start microservices. Okay. So microservices is very essential topic, as I said already. So a lot of people will be asking questions on microservices. Mostly once you clear your fundamental of Spring Boot, like you could be able to try and tell this what is Spring Boot. If you're able to understand how data flow in Spring Boot architecture, everything clear, then they will be able to ask you the question. They will definitely going to ask you question on microservices. If any one of you have taken any interview, better 3 years to Paresh has a different philosophy here for this. 1 मिनट से लेट अच्छा 3 घंटे पहले, ठीक है? तो आप आ जाना सब लोग on time, so it will help you, me and everybody to move forward on time. तो वैसे ही करेंगे. So सब लोग I'm just expecting every one of you to be on time without delaying at any point in time. तो ये microservices का architecture भी एक बार देख लेंगे. I just wanted to show you a couple of images as well. वो भी देख लेंगे and फिर we'll get started. Let me know in the chat how many of you are new to the microservice concept. Type in new into the chat. You have not worked on microservice concept yet. Type in new into the chat. Take it. We have Aniket saying new, Anaga saying new, Paresh is saying new. You are not built, मतलब apart from what I taught you, है ना? Workshop वाला छोड़ दीजिएगा, ठीक है? So if you have not built any project in your organization on microservices, please type in new into the chat. Ishwar is saying new. तो ईश्वर का काम कुछ सपोर्ट में था, तो ही हैज नॉट वर्कड ऑन इट, ठीक है? ओके, तो बाकी लोगों ने किया है. सो वी हैव 4 people आउट ऑफ 7. मतलब मेरे को छोड़ के फिर 2 ही लोगों ने ऑलरेडी काम किया है, ठीक है? सो अदर्स दे विल जॉइन एज एंड व्हेन द टाइम, और दे विल गो एंड वॉच द रिकॉर्डिंग. तो उनका उनके ऊपर छोड़ देते हैं. तो राजीव हैज वर्कड एंड कौसर हैज वर्कड. दैट्स ओनली व्हाट आई कैन सी, बट फाइन, no problem. For you it will be some of the concept may be new. Most of the things we have covered in the workshop, that what we are going to cover today. Tomorrow जो होगा वो पूरा नया रहेगा सबके लिए ही. Whether you attended workshop or not, everything will be new in tomorrow's session, and day after tomorrow will be next level. ठीक है? But today is the base. Today we will set up everything. I'll not spend a lot of time into the theoretical part. We have to cover a lot of things practically. It's 8:40. We are getting started. Microservices are small independent services communicating over the HTTP protocol. Okay. So not only this, microservices is all about, having different projects combined together and serving as a small main final project. So that is something happens in the microservices. Okay. So I'll just quickly show you. API gateway के बारे में भी देखेंगे.
and then we will also talk about some more concepts in microservices. ठीक है, सो हाइपरनेट एंड DTGPA ये वाला इमेज मेरे को चाहिए। मैं एक बार वापस जा रहा हूँ, माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर दिखाऊंगा पहले इधर, और फिर हम लोग वापस आएंगे इधर यहाँ पे। सो व्हाट इज माइक्रो सर्विसेज बेसिकली, ठीक है। तो देखो ओल्ड टाइम पे, सो व्हाट यूज्ड टू हैपन, वी यूज्ड टू बिल्ड, जो अभी तक हमने बनाया है यूजर इंटरफेसेस लाइक यूआई लेयर, बिजनेस लेयर अभी तक हमने नहीं बनाया, हमने डायरेक्टली डेटा लेयर पे गए जेपीए। बिजनेस लेयर वेरीज सिस्टम टू सिस्टम, इसलिए इसको ब्लू कलर है, बाकी सब कुछ ऑरेंज में है, ये फिक्स रहता है, ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं चेंज हुआ। बिजनेस लेयर इज वेयर योर एक्चुअल लॉजिक रिसेट्स, एंड एज आई सेड ऑन डे वन, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हाउ टू बिल्ड अ लॉजिक दैट यू आर सपोज टू लर्न इट विद जावा। यहाँ पे हम लोग सीख रहे फ्रेमवर्क, यहाँ पे हम लोग सीख रहे कि स्प्रिंग बूट में और एडवांस कॉन्सेप्ट क्या क्या है, माइक्रो सर्विस कैसे काम करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, मैसेज ब्रोकर क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। स्प्रिंग सिक्योरिटी देखेंगे, OAuth देखेंगे, फिर डिप्लॉयमेंट देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे, है ना। So these are essential when you are moving forward in your career, having 3+ years of experience. उसके पहले अगर हो 1-2 years of experience, you have to focus on logic building, and for that you have to master Java programming, ठीक है। So वहां पे आपका लॉजिक बिल्डिंग होगा। यहाँ पे आप लोग यू आर लर्निंग हाउ टू बिल्ड सॉफ्टवेयर, हाउ टू बिल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन, और एंटरप्राइज एप्लीकेशन बिल्ड करते थे पहले मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में, जहाँ पे यूजर इंटरफेस, बिजनेस लेयर, डेटा इंटरफेस एंड एक्चुअल डेटाबेस यूज्ड टू रिसाइड इन अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल फाइल बनता था, वॉर जार जो भी है, एंड इट यूज्ड टू बी अ सिंगल डिप्लॉयबल फाइल विच वी यूज्ड टू डिप्लॉय इनटू द प्रोडक्शन। अभी वैसे नहीं होता, अभी होता है माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर। उसमें क्या होता है कि वी हैव वन यूआई टॉकिंग टू वन माइक्रो सर्विस, एंड अदर माइक्रो सर्विस के साथ दूसरा माइक्रो सर्विस कनेक्ट कर सकता है, राइट। सो actually this can also connect to another microservice, that is also possible. I'm just quickly showing you this microservice UI. It is like front end, okay, client, आप उसको client बोल सकते हो, वो मल्टीपल माइक्रो सर्विस के साथ कनेक्ट हो सकता है। इट कैन सेंड रिक्वेस्ट, माइक्रो सर्विस वो प्रोसेस करेगा, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा, जो उसके लिए डेटाबेस अवेलेबल है उसके साथ कनेक्ट करेगा, डेटा वापस भेज देगा, वो माइक्रो सर्विस यूआई के पास मिल जाएगा। अभी हम लोग माइक्रो सर्विस यूआई तो नहीं बना पाएंगे, वी आर गोइंग टू यूज पोस्टमैन फॉर टेस्टिंग द यूआई थिंग। सेम टू सेम, अगर माइक्रो सर्विस ने रिक्वेस्ट भेजा दूसरे माइक्रो सर्विस के लिए, यूआई ने, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा दूसरे माइक्रो सर्विस के लिए, तो उसके डेटाबेस में जाएगा, चेक करेगा और वापस डेटा दे देगा। सिर्फ यूआई ही नहीं, हम माइक्रो सर्विस के साथ दूसरे माइक्रो सर्विस से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको हम लोग कल के सेशन में देखेंगे डिटेल में, बहुत डिटेल, दो अलग अलग वे में आपको दिखाऊंगा, फैन क्लाइंट एंड रेस्ट टेम्पलेट। तो दो अलग अलग मैकेनिज्म्स है, उसको पहले समझेंगे और फिर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर। उसमें होता क्या है कि माइक्रो सर्विस 1 will have feature 1, माइक्रो सर्विस 2 will have feature 2 of your whole application, माइक्रो सर्विस 3 will have feature 3 of your whole application। तो पूरे सॉफ्टवेयर में से छोटे छोटे फीचर, इट इज कॉल्ड एज डिवाइड एंड कॉन्कर। छोटे छोटे पार्ट्स में अगर बड़े प्रोजेक्ट को डिवाइड करेंगे तो आप उसको बहुत ही जल्दी काम कर सकते हो, बहुत फास्ट डिप्लॉयमेंट होता है, स्केलेबल, बहुत सारे फीचर्स है, दैट इज व्हेन इट इज एसेंशियल, ठीक है। हम लोग और देखेंगे डिटेल में। सो सबको ये फ्लो समझ में आया कि ये आर्किटेक्चर नहीं है। सो दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रो सर्विस। मोनोलिथिक में सब एक जगह पे होता है, अभी यहाँ पे फीचर वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, एंड फिर हर एक फीचर के लिए अलग अलग माइक्रो सर्विस बना दिया जाता है। सो एवरीबडी क्लियर विद दिस फंडा of microservice? Type in C into the chat if you're clear. Kausar said yes, Raju said yes, Ananga said yes, perfect. Aniket clear, Imtiaz clear, Parshi saying yes, perfect। चलो आगे जा रहे हैं। कोड क्यों ओपन किया, कोड नहीं ओपन करना था, रुको करेंगे, कोड को भी काम करेंगे। तो सो हियर इज अवर, इट इज इंडिपेंडेंट डिप्लॉयबल। अगर अलग से बनाएंगे उसको तो अलग से डिप्लॉय भी करेंगे। लूजली कवर्ड होता है, मतलब एक दूसरे के साथ ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, लाइक अगर एक नहीं है तो दूसरा चल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ही माइक्रो सर्विस बनते हैं। अगर बहुत ही टाइट डिपेंडेंसी है, टाइटली कपल्ड ऑपरेशन है, तो जो नॉर्मली वो एक ही माइक्रो सर्विस में किया जाता है, उसके लिए दूसरा माइक्रो सर्विस नहीं यूज किया जाता। हाँ, एंड द फोकस इज ऑन सिंगल बिजनेस कैपेबिलिटी। इसको हमने देखा है वर्कशॉप में, बट जस्ट थ्योरी वाइज मैं वापस बता रहा हूँ, जो लोग पहले ही फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मोनोलिथिक में 1 डिप्लॉयबल यूनिट होता है, माइक्रो सर्विस में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट करके डिप्लॉय कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होता है माइक्रो सर्विस का? सो बेनिफिट इज स्केलेबिलिटी, फॉल्ट आइसोलेशन, फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं इसको,
ये फॉल्ट टॉलरेंस वाला हम लोग देखेंगे सर्किट ब्रेकर पैटर्न में डे 3 को, ठीक है। वेंसडे विल सी दिस थिंग इन डिटेल। CACD इंप्लीमेंट करना बहुत इजी होता है और पॉलीगॉन स्ट्रक्चर होता है, मतलब मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग माइक्रो सर्विसेज बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज माइक्रो सर्विस। अभी हम लोग जाएंगे इसका एक्चुअल यूज केस। अगर ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो आप, तो आपको पता है कि हर एक फीचर के लिए वी विल बी एबल टू यूज सेपरेट थिंग। मल्टीपल मोनोलॉजी इज इक्वल टू माइक्रो सर्विस। यस परेश, करेक्ट। ऐसे मत समझना मल्टीपल मोनोलिथिक मतलब वन माइक्रो सर्विस, कि एक बड़े मोनोलिथिक एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है और फिर माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट किया है, ठीक है। सो मोनोलिथिक एप्लीकेशन इज यूजुअली ऑफ हेवी साइज। माइक्रो सर्विस में जो एप्लीकेशन होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, उसको मोनोलिथिक एप्लीकेशन नहीं बोल सकते हो, बट आप एग्जिस्टिंग मोनोलिथिक एप्लीकेशन को माइक्रो सर्विस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। सो इक्वल टू साइन नहीं होगा यहाँ पे, इक्वल टू साइन इज रॉन्ग। बिकॉज मोनोलिथिक में खुद का डेटाबेस होता है उसका, एंड इट विल बी ऑन अ सिंगल स्टैक। तो माइक्रो सर्विस में मल्टीपल टेक स्टैक हो सकते हैं, मल्टीपल डेटाबेस भी हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम लैंग्वेज भी हो सकती है। नथिंग कैन स्टॉप इट। तो प्रोडक्ट सर्विस एक रहेगा, ऑर्डर सर्विस रहेगा, पेमेंट सर्विस अलग फीचर है, यूजर सर्विस अलग फीचर। तो ऐसे 4 अलग अलग माइक्रो सर्विस बना सकते हैं, एंड ऑल ऑफ देम कैन कम्युनिकेट विथ यूरेका वाया यूरेका। यूरेका बनाएंगे, उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे और एपीआई गेट पे से वो कनेक्ट कर लेगा। तो अभी देखते हैं इसको कि कैसे करेगा, क्या काम करेगा। सो एनी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग, ओके नाउ दैट इज डिपेंड्स लाइक, मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो लोग नए हैं इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सो देर इज अ स्केलिंग कॉन्सेप्ट इन क्लाउड, ठीक है। तो ये उधर से चालू हुआ है, मुझे नहीं पता क्लाउड्स के बाद, बट क्लाउड के आने के पहले ही माइक्रो सर्विस था। तो लेट्स सी। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज लाइक देयर आर, अगर आपका एक एप्लीकेशन है, दिस इज योर एप्लीकेशन रनिंग ऑन अ सिस्टम, ठीक है। तो इमेजिन करो ये अपना सिस्टम है। इफ आई मेक अ ड्राइंग रॉन्ग तो हंसना मत, ठीक है। इतना ही अच्छा मैं बना सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज वेयर योर एप्लीकेशन इज रनिंग, एप्लीकेशन ए। तो अभी इसको लग रहा है रिसोर्सेज, सपोज 1 GB ऑफ रैम, देन 2 कोर ऑफ सीपीयू, है ना। 2 कोर ऑफ सीपीयू इतना लग रहा है अभी करंटली। फ्यूचर में क्या हुआ, इसका लोड बढ़ गया। अभी इसको 1000 यूजर कनेक्ट कर रहे थे, अभी उसको फ्यूचर में जब मंथ एंड रहेगा, क्रिसमस का इवेंट रहेगा, तो बहुत ज्यादा लोग आएंगे वापस बाय करेंगे गिफ्ट्स एंड ऑल। तो वी नीड मोर साइज, करेक्ट। वी नीड मोर रिसोर्सेज टू सर्व द रिक्वेस्ट। तो उसके लिए क्या होता है, इसके लिए करना पड़ता है हमें स्केलिंग। तो स्केलिंग 2 तरीके की होती है। एक तो होता है वर्टिकल स्केलिंग, मतलब क्या हुआ, वही कंप्यूटर को मैंने बना दिया बड़ा। तो ये बड़ा कंप्यूटर हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल स्केलिंग। अभी 1 GB ऑफ रैम था, मैंने 2 GB ऑफ रैम किया। 2 कोर सीपीयू था, मैंने 4 कोर सीपीयू किया, और ये बन गया बड़ा कंप्यूटर। ये 2 GB ऑफ रैम है, ठीक है। फॉरगेट अबाउट माय ड्राइंग। और ये 4 कोर का सीपीयू है, प्रोसेसिंग करने के लिए लगता है ना। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल मतलब एग्जिस्टिंग था उसी को बड़ा बना दिया, है ना। सो दिस वाज एक्स, इसको बना दिया एक्सेल, है ना। एक्सेल डबल कर दिया, बड़ा कर दिया, है ना। डबल कर दिया उस, ये दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग। दूसरा होता है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि बोलते हैं यार ये डब्बा काम नहीं कर रहा है ठीक से, बराबर, इसमें 1000 रिक्वेस्ट सर हो रहे हैं और तुम्हारे को 2000 आ रहे हैं, तो तुम क्या करो, और एक डब्बा साइड में बनाओ। डब्बा मतलब मशीन, ठीक है। सो इट विल क्रिएट वन मोर मशीन बिसाइड्स, ठीक है। तो और एक मशीन बनाएगा, दोनों के दोनों मशीन का साइज सेम ही होगा। इसका साइज होगा 1 GB ऑफ रैम, इसमें भी 1 GB ऑफ रैम, इसमें भी 2 GB ऑफ 2 कोर ऑफ सीपीयू, इसमें भी 2 कोर ऑफ सीपीयू। तो हुआ क्या, रैम 2 GB, वर्टिकल स्केलिंग में भी रैम 2 GB है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में भी रैम 2 GB ही है। सीपीयू यहाँ पे भी 4 कोर है, यहाँ पे भी 4 कोर ही है, एग्जैक्ट सेम। बट और दोनों ही अभी नेक्स्ट जो 2000 रिक्वेस्ट आएंगे, दोनों को ही ये सर्व कर पाएगा। बट स्टिल people sometimes, not sometimes, people every time in industry they are preferring horizontal scrolling, because अगर मेरा एक सिस्टम पूरा डाउन हो गया, सपोज फॉर एग्जांपल बाय एनी चांस, तो thousands ऑफ यूजर टुगेदर विल क्रैश, नथिंग विल वर्क। अगर इसमें से एक भी डाउन हुआ तो रिमेनिंग लोग तो चलेंगे, इधर तो काम होगा। सो इसलिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग प्रेफर किया जाता है। वही हो रहा है माइक्रो सर्विसेज के केस में। मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ।
सिंस ही हैज ब्रॉट द पॉइंट, लेट मी जस्ट एलैबोरेट यू कि वही हो रहा है माइक्रो सर्विस के केस में कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सिस्टम था। इमेजिन करो, दिस इज अ होल बिग एप्लीकेशन, इतना बड़ा एप्लीकेशन है, इसमें बहुत सारे फीचर्स अंदर अंदर है ना। सो देर आर फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2, फीचर नंबर 3, फीचर नंबर 4। तो अभी इसमें अगर कुछ गड़बड़ हुआ इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में तो सारे के सारे फीचर बंद पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर इसमें से किसी एक को मुझे अपग्रेड करना है फॉर एग्जांपल, तो मुझे पूरा बंडल को अपग्रेड करना पड़ता है, अपस्केल करना पड़ता है, तो विच इज वेरी हेक्टिक। तो माइक्रो सर्विस वाले लोग क्या बोलते हैं, जिन्होंने माइक्रो सर्विस सोचा था इनिशियली, तो लोग बोलते हैं भैया तुम टेंशन मत लो, तुम क्या करो, तुम उसको छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड करो। देखो चीज वही है, ठीक है, चीज वही है, सिर्फ डीलिंग किया है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन ईच वन ऑफ them. This is 1, this is 2, this is 3 and this is going to be 4। अभी तो लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ इसलिए तो बॉक्स तो बन रहा है, राइट हैंड से करते तो बॉक्स भी नहीं बनते। ठीक है, ये आई एम नॉट यूजिंग दैट माई नोट पैड टूडे। ठीक है, तो वही है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें कन्वर्ट, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो सर्विस। तो ये अलग अलग माइक्रो सर्विस है, M1, M2, M3, M4। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज माइक्रो सर्विस। यहाँ पे होता है, यहाँ पे स्केलिंग नहीं होता है। सो द कॉन्सेप्ट स्केलिंग डजंट अप्लाई ओवर हियर, इसको सिर्फ अपन डीकपल कर रहे हैं, दैट्स इट। रिसोर्सेज उतने ही लगेंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, बट देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलिंग राइट नाउ इज नॉट एप्लीकेबल। अगर हम उसको उतना ही लोड है, सिर्फ हम लोग उसको डीकपल कर रहे हैं सो दैट इट विल क्रिएट अ सेपरेट सिस्टम। ठीक है, इफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सर्विस इंडिपेंडेंट, नो डिपेंडेंसी ड्यूरिंग क्रैश। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इंडिपेंडेंट नहीं, बैकएंड अगर डेटाबेस कॉमन है तो डिपेंडेंट है, नॉर्मली उसके भी रेप्लिका बनाए दिए जाते हैं, बट कोड बेस तो अलग अलग रन हो रहा है ना, तो उस केस में इट इज देयर इज नो डिपेंडेंसी। बिकॉज देखो फाइनली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस, है ना। तो एटोमिसिटी वो मेंटेन करता है, और क्या क्या फुल फॉर्म ढूंढ लीजिएगा, इंटीग्रिटी वगैरह मेंटेन करता है। तो अगर एक माइक्रो सर्विस, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में एक सिस्टम पे जो रिक्वेस्ट आया उसने उसका कंप्लीट करने के तब तक दूसरे सिस्टम से वहां पे सेम ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होते मोस्टली। ठीक है, तो देर इज, इफ यू सी देर इज नो डिपेंडेंसी ड्यूरिंग द क्रैश, एक बंद हो जाएगा तो दूसरा चल जाएगा, बट अभी रिक्वेस्ट जितने सर्व करेगा उसमें ही लिमिट रहेगा, बट चल जाता है, देर इज नो इशू, प्रोवाइडेड डेटाबेस इज नॉट होस्टेड ऑन एनी ऑफ द सिस्टम, वो सेपरेट होस्टेड रहेगा तो हो जाता है। ठीक है, और फिर हम लोग अभी देखे हैं कि बड़े सर्विस को, बड़े सिस्टम को कैसे हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ई कॉमर्स एप्लीकेशन है बड़ा वाला, पहले क्या होता था, पहले ई कॉम को इधर ही किया जाता था, सॉरी ऐसे टेक्स्ट भी कर सकते हैं ना, ई कॉमर्स को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज ई कॉमर्स एप्लीकेशन, उसमें से 1 2 3 4 सब कुछ अंदर ही है। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम क्या करो, सेपरेट सेपरेट बनाओ, तुम इधर बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनाओ, प्रोडक्ट, दैट्स इट, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट सर्विस, ये ऑर्डर सर्विस, ये ऐसे ऐसे करो, ऐसे बोल रहे हैं वो लोग, और हम लोग कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में करेंगे, 10 मिनट में विल स्टार्ट। सर अगर हम पहले की बात करें तो कभी ई कॉमर्स वेबसाइट जो पेमेंट गेटवे यूज करता होगा, स्टिल माइक्रोसॉफ्ट नहीं, वो माइक्रो सर्विस नहीं होता, तो इट इज डिफरेंट ऐप कम्युनिकेशन। देखो माइक्रो सर्विस जो होता है ना, एक ही सॉफ्टवेयर कंपनी में ने बनाया होता है। अभी हम अभी आज इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो पेमेंट गेटवेज रिसेंटली अभी ऐड किया है लोगों ने खुद का, बट हमेशा पहले पेमेंट गेटवे किसी और कंपनी का होता था। लाइक इनिशियल डेज व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, पेपल नाम का कंपनी है, उनका पेमेंट गेटवे हम लोग यूज कर रहे थे बहुत ही शुरू में, लाइक 2015 16 17 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उधर से पेमेंट होते थे, तो पेपल इज अलग ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम पे पेमेंट गेटवे के लिए अलग ही कंपनीज काम कर रही थी, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही थी वो पेमेंट गेटवे नहीं डेवलप कर रही थी। फिर बाद में अमेजोन ने उनका अमेजोन पे अभी लाया है ना, अभी मतलब 2 3 सालों के शायद से। ठीक है, देख लेते अमेजोन पे का रिलीज डेट क्या है। ठीक है, तो उसके पहले वो नहीं था, इज समथिंग आई एम टेलिंग यू, ताकि आपको पता चले कि पहले कैसे काम करता था। अमेजोन पे रिलीज कब आया था, ये 2019 में आया था। ठीक है, यूपीआई सर्विसेज लॉन्च, ठीक है, तो उसके पहले शायद उन्होंने लाया था, बट वो इतना चल नहीं रहा था, नोबडी वाज यूजिंग इट। तो मैंने तो खुद लॉकडाउन के बाद यूज किया है अमेजोन पे को,
उसके पहले हम लोग नहीं यूज कर रहे थे, ठीक है। सो समथिंग सिमिलर टू दिस, पीपल यूज टू हैव डिफरेंट पेमेंट गेटवे। मैं दिखाता हूँ यहाँ पेमेंट गेटवेज, gateways used by e-com platforms before 2010। एक सेकंड में, 2012 नहीं, नंबर गलत है, 21। हाँ, तो अभी यहाँ पे आपको पता चला क्या यूज, देखो पेपल यूज कर रहे थे और पेपल ही यूज कर रहे थे। मैं पेपल ही बोला था ना, या दूसरा कुछ बोला था मैं? डिड आई से पेपल और स्ट्राइप? हाँ, स्ट्राइप भी यूज करते। पुराने टाइम पे नहीं था, स्ट्राइप भी नया है, रिसेंट है। हम्म तो स्ट्राइप, पेपल ऐसे चीजें लोग यूज कर रहे थे, एंड देन इट वाज देयर। अभी रिसेंट अगर देखेंगे ना, अभी आफ्टर 2012, आफ्टर 2020, आफ्टर 2020, बिफोर आफ्टर लिख दिया, वो कंफ्यूज हो रहा है, क्या क्या चाहिए भैया तुमको? आफ्टर, तो अभी अभी डिपेंड करता है आप कहाँ पे लिख रहे हो। इंडिया, मतलब बाहर के मुझे पता भी नहीं होंगे ना। तो अभी देखो रेजर पे वगैरह यूज करें, जो आप टेक्नोलॉजी का पेमेंट गेटवे देखोगे तो रेजर पे है, ठीक है। तो वी आर यूजिंग रेजर पे। तो लोग कुछ है इंटरनेट पे अभी, पीपल लाइक अवर्स दे आर यूजिंग कैश फ्री एज वेल, तो कैश फ्री और रेजर पे यही यूज करते हैं, इसके अलावा नहीं यूज करते। बट दीज आर द सेपरेट कंपनीज ऑल टुगेदर। तो खुद का पेमेंट गेटवे सिर्फ अमेजोन का है, और फ्लिपकार्ट का या पेटीएम का है ना। तो पेटीएम भी खुद शॉपिंग प्लेटफॉर्म देता है उनके इस पे, और खुद का ही है। बट दीज आर द पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो बाकी लोग ऐसे ही इंटरमीडिएटर वगैरह होते हैं, तो वो माइक्रो सर्विस के कॉन्सेप्ट में नहीं आते हैं। दे विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो सर्विसेज, बिकॉज माइक्रो सर्विस लाइक एक कंपनी का ही पूरा का पूरा सिस्टम है ना। तो वहाँ पे दूसरे मशीन को कम्युनिकेट करेंगे, तो इट इज लाइक इंटर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन। अभी एक ही एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, विच इज अ सिंगल एप्लीकेशन डूइंग ऑल द मैजिक। और सिंगल एप्लीकेशन को ही मैं ब्रेक कर रहा हूँ, अभी ये चल रहा है ना। ई कॉमर्स मेरा खुद का ही है, उसमें ही मैं पार्ट्स कर रहा हूँ, डिवाइड एंड कॉन्कर। तो वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है परेश। आई होप यू गॉट द आइडिया। हाँ, तो ये एक एपी आर्किटेक्चर देख लेंगे हम लोग, सर्विस रजिस्ट्री शुरू करेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे, वापस से आ पाएंगे। I guess you guys are familiar with this diagram, so this is very essential. Before we move forward, I'm going to show you one more time. I want you to take a note of it. इसके बारे में बात करेंगे कल सब लोग। इंटरनेट पे जाना एंड इंटरनेट पे बोल रहा हूँ, लिंक्डइन पे जाना, पुट अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग यार, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज आर्किटेक्चर ऑफ स्प्रिंग बूट, सॉरी माइक्रो सर्विसेज, एंड वी आर लर्निंग इट, ठीक है। लेट पीपल नो दैट यू आर लर्निंग माइक्रो सर्विसेज, इट इज वेरी वेरी इसेंशियल, ठीक है। क्रॉप करके छोटा करके डाल दें। तो होता क्या है माइक्रो सर्विसेज में, कि पहले ये सारे लोग एक साथ थे, अभी इसको सेपरेट सेपरेट आउट कर दिया, मतलब देर इज नो रिलेशन डायरेक्टली ये एक दूसरे के साथ अभी बात नहीं कर सकते। इनको बात करना है तो यूरेका सर्विस के साथ बात करेंगे। बट उसके पहले माइक्रोसर्विस 1 इज वन प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, माइक्रोसर्विस 2 इज वन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, माइक्रोसर्विस 3 इज वन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। तो हम अभी बनाएंगे 2 प्रोजेक्ट और, या फिर एक और बनाएंगे। एक तो हमारे पास ऑलरेडी है, उसी का यूज करेंगे। एक एपीआई गेटवे बनाएंगे और एक यूरेका सर्वर बनाएंगे। दैट इज समथिंग वी विल बी डूइंग राइट नाउ राइट हियर, ठीक है। चल, तो यूरेका सर्वर क्या है वो समझ लेते हैं पहले, फिर इसके ऊपर जाते हैं। आर्किटेक्चर एक बार समझा देता हूँ जो लोगों ने इसके पहले काम नहीं किया है। दिस इज फॉर अनगा एंड अनिकेत। So when you attended the workshop, we have not covered microservices. This is your first time you are learning. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके बाद जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा मेरे स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन के पास, पहले कैसे होता था, पहले मतलब कल तक पोस्टमैन से मैंने कुछ रिक्वेस्ट हिट किया, दैट रिक्वेस्ट यूज टू गो टू डायरेक्टली स्प्रिंग बोर्ड प्रोजेक्ट का कंट्रोलर पे, ठीक है। अभी ऐसे नहीं होगा, अभी वो रिक्वेस्ट आएगा एपीआई गेटवे के पास, फिर एपीआई गेटवे उसको राउट करेगा कि आपको इस सर्विस के पास जाना है या फिर इस सर्विस के पास। एपीआई गेटवे विल डू द राउटिंग। राउटिंग मतलब कौन किधर जाएगा वो एपीआई गेटवे डिसाइड कर देगा, बाकी बीच में कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। और फिर एपीआई गेटवे को पता कैसे चलेगा कि इतने माइक्रो सर्विसेज अवेलेबल है, तो उसको पता चलेगा थ्रू यूरेका सर्वर। अभी यूरेका सर्वर क्या चीज है, तो इट इज सेंट्रलाइज हब, सर्विस डिस्कवरी भी बोलते हैं उसको, जहाँ पे सारे माइक्रो सर्विसेज आके रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी माइक्रो सर्विस
बना दिया तो वो माइक्रो सर्विस इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट है? तो दैट प्रोजेक्ट इज यूरेका सर्वर। ये एप्लीकेशन रहेगा, तो वहां पे वो होना ही होना है, अदरवाइज नहीं, काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग कैसे बनाना है। सो हियर आई गो, व्हाट इज सर्विस रजिस्ट्री? सर्विस रजिस्ट्री मतलब यूरेका सर्वर। सो यूरेका सर्वर स्टोर्स एड्रेसेस ऑफ ऑल रनिंग सर्विसेज। मेरे पास सर्विसेज मतलब हमारे स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट है सारे प्रोजेक्ट का एड्रेस हम लोग यहाँ पे करेंगे स्टोर। हम्म कैसे करेंगे स्टोर, तो मैं आपको दिखाऊंगा डेमो। यूरेका सर्विस इज डिफॉल्ट एनी अदर अल्टरनेटिव यू हैव इन केस ऑफ स्प्रिंग बूट? गुड क्वेश्चन। तो देयर इज वन मोर अल्टरनेटिव, लोग पूछते हैं इंटरव्यू में भी, बट आपने यूरेका सर्वर पे काम किया है तो आपको वही बताना है। मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने यूरेका भी काम किया। व्हाट इज अल्टर है, एक है, मैंने जेडी में पढ़ा है किसी के, अल्टरनेटिव टू यूरेका सर्वर इन स्प्रिंग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। क्या नाम है भैया आपका? हैशिकॉर्प नहीं, हाँ ये जू कीपर है पक्ष का। तो दिस जू मतलब मैंने इसको नहीं देखा है, मैंने जू कीपर को देखा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, मतलब देखो नाम से याद आया, तो वो बाकी सारे एप्लीकेशन को वॉच करके रखता है। सो दिस जू कीपर इज समथिंग इज दैट, क्लाउड मैप नहीं, अलीबाबा नहीं, कुछ नहीं, तो ये जू कीपर हमने यूज किया है। सो दिस विल आल्सो, उसके लिए भी डिपेंडेंसी डालनी पड़ती है, जू कीपर डिस्कवर, ये भी डिस्कवरी सर्विस से। हैशकॉर्प एक्चुअली मैंने नहीं काम किया कभी, तो मुझे नहीं पता है। सो आई हैव हर्ड अबाउट जू कीपर व्हेन पीपल आर आस्किंग इन द इंटरव्यूज, या फिर जे जे डिस्क जेडी होता है ना, तो यूरेका सर्वर के बाद जू कीपर लोग यूज करते हैं। हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिस्कवरी सर्वर यूज, व्हाट इज what is the most used discovery server in Spring Boot architecture? हाँ, तो इट इज वाइडली यूज इज यूरेका, डेवलप बाय नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स से खुद ने डेवलप किया है, तो इसीलिए इसका पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है। उन्होंने खुद के लिए किया था एक्चुअली, फिर बाद में उन्होंने ओपन कर दिया सब लोगों के लिए। ठीक है, सो दैट इज समथिंग, व्हाट इज व्हाट नहीं आर्किटेक्चर, तो नाम अभी ये गूगल जेमिनाई ने दिया ना, तो इन्होंने इंटरनेट पे सर्च करके दिया होगा। अदर ऑप्शंस भी है, यहाँ पे उन्होंने हैशिकॉर्प लिखा है, एंड जू कीपर मैंने जेडी में पढ़ा है बहुत टाइम्स। सो दीज आर द अल्टरनेटिव। हाँ, तो ये दो नाम, हैशिकॉर्प पहला नाम आ रहा था, तो इसको याद रखिए। और अपाचे का जू कीपर है, जिसको हमने बहुत सारे जेडी में देखा है जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी एक एक्स्ट्रा नाम है जो आप याद रख सकते हो। ठीक है, अल्टरनेटिव में लिख ही देता हूँ, मेरे पीपीटी में भी रहेगा, लोगों को हेल्प होगा। अदर अल्टरनेटिव्स than यूरेका। तो एक है हैशिकॉर्प और दूसरा है अपाचे ज़ूकीपर। ठीक है, यस, तो दीज आर दी टू पीपल आउट देयर हु आर इन द कंपटीशन। बट मैं बोल रहा हूँ आपको विथ माय एक्सपीरियंस, आई वर्क विथ 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट। अभी तक हमने सिर्फ यूरेका के साथ ही काम किया है, एंड वेन एवर आई लैंड अप इन इंटरव्यू, और मेरे स्टूडेंट्स भी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो नो बडी हैज, अगर उन्होंने बोला कि मैंने यूरेका के साथ काम किया है, तो उनको यूरेका पे ही क्वेश्चन पूछे गए। उनको ये नहीं पूछा गया कि अरे अपने हैशिकॉर्प के पास या फिर ज़ूकीपर के ऊपर क्यों नहीं काम किया। ठीक है, सो इट्स जस्ट एन सेंट्रल रिपोजिटरी, सेंट्रल गेटवे, या फिर क्या, डिस्कवरी सर्वर इज द राइट वर्ड फॉर इट। तो इसको डिस्कवर सर्विस डिस्कवरी बोलते हैं, डिस्कवरी सर्वर, जो भी आपको नाम देना है इसको। बट इसका काम सिर्फ ये है कि बाकी सर्विसेज को एक दूसरे के साथ बाइंड कर दो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ईपीआई गेटवे जब आएगा तो इसके बारे में बात करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी के लिए सिर्फ। ठीक है, चलो, सो दिस इज यूरेका सर्वर, तो उसको करेंगे सेटअप। सो सर्विस रजिस्ट्री हमने देख लिया, अभी यूरेका सर्वर को करेंगे सेटअप। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, एवरीबडी विल डू इट विथ मी, सो आई एम गोइंग टू डू इट राइट नाउ विथ यू एज वेल। तो हम करेंगे, जाएंगे, कहाँ से हम लोग बनाते हैं प्रोजेक्ट? स्प्रिंग इनिशलाइजर, स्प्रिंग इनिशलाइजर। चलो, तो यहाँ पे आएंगे, जावा मेवन 3.5, नाम देंगे यूरेका सर्वर, यूरेका सर्वर।
जार प्रॉपर्टीज 25 वैसे रखेंगे, इधर करेंगे डिपेंडेंसीज ऐड। सर्वर, सॉरी सर्वर बोल रहे, यूरेका डालना है, यूरेका, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, यूरेका सर्वर। देखो ये सर्वर है वो डालना है, ये डिस्कवरी क्लाइंट हम लोग हमारे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में और एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें ऐड करेंगे, और अपाचे गेटवे में भी ऐड करेंगे। इधर हम लोग करेंगे यूरेका सर्वर ऐड। ये सर्वर एक ही बार होगा, ओनली वन प्रोजेक्ट विल बी देयर हैविंग दिस डिपेंडेंसी। उसके बाद मैं डेव टूल्स डाल रहा हूँ ताकि मुझे रिस्टार्ट करने आए, बाकी कुछ नहीं डालूंगा। आई नीड ओनली सर्वर। एक्चुअल में सिर्फ सर्वर से काम हो जाएगा, मुझे एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगेंगी, बट फिर भी मैं बैकअप के लिए डेव टूल्स डालता हूँ। Okay, do this setup, add this dependency, click on generate. Type in G once you downloaded the zip file. G into the chat. One person has typed G. Done. जल्दी जल्दी करना है सबको मेरे साथ। वी हैव राजीव जनरेटेड, परेश जनरेटेड, अनिकेत डन, ईश्वर डन, अनघा इज ऑल्सो डन। चलो, गुड टू सी यू गाइस। चलो, तो जनरेट करो, डाउनलोड होगा, उसको ओपन करेगा इक्लिप्स में। सो मेक श्योर योर यूरेका सर्वर इज ओपन। यूरेका सर्वर जैसे ही आप ओपन करोगे इक्लिप्स में, यू हैव टू ओपन अ फाइल कॉल्ड एज एप्लीकेशन डॉट जावा, दैट्स इट। एक ही फाइल ओपन करेंगे। जैसे यूरेका सर्वर आएगा, आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कोड नहीं है, एक ही फाइल है यूरेका सर्वर एप्लीकेशन डॉट जावा, और बाकी कोई भी चीज हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ओपन दिस थिंग एंड यहाँ पे आपको करना है, यू आर टू सपोज टू राइट enable Eureka server. So this annotation you have to write it by yourself. So do it right now. Type it enable Eureka server. तब तक मैं quickly एक शॉप के लिए recordings. Once you're done, once you're done with the typing, let me know into the chat done. Done. Perfect.
4 people done. Done. Okay, 1, 2, 3, 4. So it was just very simple thing that you are supposed to type in. Hmm? Hmm? Just a second, I'm just doing something in the background which I want to share the link for. And here I go. Control all, copy. Take amplifiers. So, okay. All right. Sure. Next. So this is the only one thing that we need to do in this particular file, but we have to do some more changes into the resources section. So now let me just tell you why what exactly this is. Kind of day one पे हमने जब Spring Boot का session शुरू किया था, I have explained you this annotation, so you are already aware about it. So what this annotation is doing, so it is adding that additional feature of hosting it as a server. Means other clients, other microservices can connect to this. ये एप्लीकेशन जहां कहां पे भी रन होगा उस पोर्ट को अगर कोई कनेक्ट करेगा तो इट विल ऑटोमेटिकली रजिस्टर एज अ क्लाइंट ऑफ दिस सर्वर. ठीक है, मतलब ये तो पहले रन होगा एज अ सर्वर एक पोर्ट पे, और उस पोर्ट को जो कोई कनेक्ट करेगा वो इसके साथ एज अ क्लाइंट करके अटैच होगा. ये दो चीजें ये एक्चुअली एनोटेशन कर रहा है. ठीक है, सो अभी नॉट ओनली दिस बट उसको एडिशनल भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं यहाँ पे. सो वी हैव टू ऐड दिस कॉन्फ़िगरेशन जस्ट टू मेक श्योर दैट it will act as a Eureka client only. ठीक है, सॉरी यूरेका सर्वर ओनली. तो यूरेका क्लाइंट डॉट रजिस्टर विथ यूरेका, मतलब ये यूरेका सर्वर दूसरे यूरेका सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, like since it's a server we will not allow it to register with Eureka, false. We cannot allow it to register with other Eureka server. तो ये अकेला ही रहेगा, false करें. ये तो अपना सर्वर डॉट पोर्ट है, पोर्ट नंबर में यहाँ पे कोई भी डाल सकता हूँ, बट यूरेका सर्वर का स्टैंडर्ड पोर्ट इज लाइक दैट इज द स्टैंडर्ड हु हैज बिल्ड दिस यूरेका जो नेटफ्लिक्स ने बनाया था. उन्होंने उनका पोर्ट 8761 रखा था, इसलिए सब लोग 8761 पोर्ट ही यूरेका सर्वर के लिए यूज करते हैं. दिस स्टैंडर्ड पोर्ट डालने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, चल जाएगा. ठीक है, सो सेकंड सेट कॉन्फ़िगरेशन आई एम डूइंग इट लाइक फेच रजिस्टर इज इक्वल टू फॉल्स. रजिस्टर हम लोग एक्स्ट्रा एडिशनल डिटेल हम लोग नहीं फेच करेंगे. तो ये दो तीन लाइंस आपको आपके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में ऐड करनी है. दैट्स इट, यूरेका सर्वर इज रेडी. ठीक है, तो हम लोग करेंगे एक बार रेडी होने के बाद यूरेका सर्वर को करेंगे स्टार्ट. ठीक है, तो अभी लाइन कॉपी करना, यूरेका सर्वर को स्टार्ट करना, देखते हैं क्या हो रहा है. So here you go, my Eureka server is here. Eureka server, I'm just running it as it is. Here I go, I ran my server. चलो रन करिए सब लोग. Once you are able to see the Eureka server, I wanted to see the screenshot of your Eureka. ठीक है, क्या है screenshot of Eureka? So you will go and you will find localhost 8080, sorry local, अरे इधर कैसे आ गया. वार्निंग है, रेड कलर का दिख रहा है बट वो वार्निंग है, इग्नोर मार दीजिएगा उसको. लोकल होस्ट कोलन 8761. तो जैसे ही आप ये यूआरएल डालोगे यू शुड बी एबल टू सी दिस पर्टिकुलर पेज. कॉपी करिए, ये लिंक आपको टाइप करना है, एंड वंस यू आर एबल टू सी इट, type in yes into the chat box so that I'll understand that you are able to see this particular page after running your project. प्रोजेक्ट में कुछ एरर आया तो मुझे एरर बता दीजिएगा. लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट.
Type in yes if you're able to see this particular link. Up, yes, I will like, नहीं up नहीं, अब बाद में क्या बोल रहा हूँ? इम्तियाज, जब ये माइक्रो सर्विस अप होगा तब मैं अब बोलूंगा, अभी मेरे को बताओ कि यूरे का सर्वर रनिंग है क्या, दैट्स इट। टाइप इन यस इफ इट इज रनिंग। माइक्रो सर्विस अप होगा तो यहाँ पे हमें स्टेटस दिखेगा अप। तो अभी स्टेटस नहीं आया ना, ये स्टेटस वाला ब्लैंक है, अभी आएगा थोड़ी देर में, ठीक है। चलो डन एवरीबॉडी, कैन यू, आर यू गाइज एबल टू सी द स्क्रीन? कुछ नहीं किया है हमने, एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो प्रोजेक्ट में हमने एक डिपेंडेंसी ऐड किया होगा वाइल क्रिएटिंग, और फिर हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस करे हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, और नहीं, पहले हमने एप्लीकेशन डॉट जावा में चेंज किया और फिर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में चेंज किया। These are only two changes and make the project up. Anaga, can you please confirm? If you're facing issues, please put the screenshot into the chat. मैं chat में देखूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। डन, रन हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट। सो दिस इज यूरे का सेटअप, बहुत ही सिंपल सा था। हम लोगों को जाना था नेटफ्लिक्स यूरे का सर्वर वाला डिपेंडेंसी ऐड किया, और देखो ये एनोटेशन रिक्वायर्ड है, ये दो ही चीजें, डिपेंडेंसी और ये एनेबल यूरे का सर्वर, इससे काम हो जाता है, ठीक है। एंड फिर हम लोग ने यहाँ पे सेटअप करना है कि यूरे का सर्वर का नाम, ये एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में ये, इसको फिर हम लोग यूरे का सर्वर नाम दिया उसका, यूरे का सेटअप फॉल्स किया, फेच रजिस्ट्री को नहीं बोला कि इसको कोई फेच ना कर पाए दूसरा, है ना, तो वो सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन नहीं करे हैं हमने। एंड आवर यूरेका सर्वर इज अप। एवरीबॉडी क्लियर विद यूरेका सर्वर? क्या करता है यूरेका सर्वर? यूरेका सर्वर विल हेल्प अस टू रिजॉल्व द अदर डिपेंडेंसीज, मतलब डिपेंडेंसी बोलो अदर माइक्रो सर्विसेज, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट सर्विस को ढूंढ रहा है तो उसका एंट्री यूरेका सर्वर में रहेगा। तो ऑर्डर सर्विस अगर ट्राई टू कम्युनिकेट विद प्रोडक्ट सर्विस, तो वो यूरेका सर्विस के पास जाके चेक करेगा वेदर द प्रोडक्ट सर्विस अप, अगर अप है तो यूरेका सर्वर को पता रहेगा, और यूरेका सर्वर से इसको भी पता चलेगा। तो दैट इज हाउ इट मेंटेन्स ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द माइक्रो सर्विस और यूरेका सर्वर में टू वे कम्युनिकेशन होता है। उधर से डेटा इधर भी आ सकता है, इधर से डेटा उधर भी जा सकता है। तो जो भी मैं माइक्रो सर्विस बनाऊंगा अभी, ये देखो यही बनाया हमने अभी तक। हमारा कल का प्रोजेक्ट है वो अभी तक यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर करने के लिए कुछ और काम करने पड़ते हैं, दिखाता हूँ। तो मैं एक बार देखता हूँ हमने क्या प्रोडक्ट सर्विस बनाया है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे दूसरा कौन सा बनाएंगे। ये यूरेका, और हमारा क्या था, रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई में क्या कंट्रोलर बनाया हमने, कंट्रोलर देखना चाहूंगा मैं, ये कंट्रोलर, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाया। तो प्रोडक्ट कंट्रोल में एंड पॉइंट देखूंगा एक बार, और फिर हम लोग जाएंगे इसको यूज करेंगे, एक ऑर्डर सर्व कंट्रोलर बना देंगे, ऑर्डर सर्विस। ओके, तो प्रोडक्ट को सिर्फ गेट ऐड वगैरह करने का काम है, यहाँ पे ऑर्डर नहीं डाल रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर नाम का एक अलग से प्रोजेक्ट बना देंगे, ऑर्डर सर्विस। चलो एवरीबडी गो टू योर दिस थिंग अगेन, स्प्रिंग इनिशियलाइजर अगेन, स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे जाओ क्विक, गए। सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ नाम चेंज करना है, ऑर्डर हाइफन सर्विस, हाइफन रखिए, नहीं रखा तो भी चलेगा, बट आई एम जस्ट फॉलोइंग द सिंटैक्स। तो यहाँ पे होगा क्या, ये हमारा नॉर्मल प्रोजेक्ट रहेगा जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा, फिर काम करेगा, बाकी सारी चीजें करेगा। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज मुझे लगेंगी। अभी तो ये जार प्रॉपर्टीज 25 ऐसे रख रहा हूँ, मेरी इधर 25, इसलिए यहाँ से हम लोग निकाल देंगे यूरेका सर्वर डिपेंडेंसी को, बिकॉज सर्वर नहीं है ये। फिर हम क्या ऐड करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे यूरेका का क्लाइंट, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, देखो इसको ऐड करेंगे, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट। ये तो हो गया, डेव टूल्स ये हो गया, बट हमें बनाने यहाँ पे रेस्ट एंड पॉइंट्स, तो मुझे वेब लगेगा। हम लोग इसको करेंगे डेटाबेस से कनेक्ट, तो पहले जेपीए लगेगा, और फिर जावा डेटाबेस अगर यूज जेडीबीसी के लिए मुझे
MySQL के लिए SQL लगेगा। SQL नहीं, MySQL डाला, MySQL। ये ड्राइवर। So I need these 5 dependencies in order to get started और create new project in Spring Boot, जो प्रोजेक्ट में बाद में जाके एज अ क्लाइंट, देखो ये एज अ क्लाइंट इसको रजिस्टर कर पाएंगे यूरेका सर्वर में। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपके पास है और उसको आपको माइक्रो सर्विसेज में ऐड करना है, तो आपको उसमें सिर्फ ये डिपेंडेंसी ऐड करना है, दैट्स इट, हो जाएगा। हम करेंगे, पहले इसको बनाइए और क्लिक ऑन जनरेट बटन, डाउनलोड हो जाएगा। वंस डाउनलोडेड ओपन द प्रोजेक्ट ओवर हियर, वंस ओपन टाइप इन ओ इनटू द चैट। एक बार अगर ओपन हो गया आपका प्रोजेक्ट तो ओ टाइप करिए चैट में, फिर हम लोग आगे देखते हैं। Once you open the project of order service, open the this file, क्या order service application डॉट जावा, ये ओपन करिए। वंस यू ओपन दिस प्लीज टाइप इन ओ इनटू द चैट कि ये ओपन किया है। इसमें कुछ कोड नहीं लिखेंगे अभी, सिर्फ ओपन कर दीजिएगा। टाइप इन ओ इन, हाँ प्रेस दैट ओ। Hey, we have few more people saying, oh, can you come again? The dependencies get added for this service. Yes, wait a second. Wait a second. There are 5 dependencies because we are going to connect with a database. We need it. We are going to create REST endpoint. So that's when web is needed. Database MySQL है, इसीलिए मुझे MySQL का ड्राइवर भी चाहिए. And that's why we added it. Clear? Yes, no, anything quick into the chat. Once you open the project, आपको सिर्फ O टाइप करना है, that's it. Why we use 2SQL? 2SQL किधर है? ये जेपी के लिए है, ये डेटाबेस का ड्राइवर है। जेपी के साथ आप पोस्टग्रेस यूज कर सकते हो, ओरेकल यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। ये 2 एसक्यूएल के नहीं है, ये परसिस्टेंट लॉजिक के लिए जावा परसिस्टेंट एपीआई। इसके वजह से हम लोग रेपोजिटरी लिख सकते हैं और वही रेपोजिटरी अंदर जाके जब क्वेरी बनाएगा और वो क्वेरी एग्जीक्यूट करने का टाइम आएगा डेटाबेस पे, तो इस ड्राइवर का हेल्प लेके एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस। तो ये हमारे लिए पूरा, मैं जावा का कोड दूंगा, ये उसका एसक्यूएल की कोड में कन्वर्ट करेगा, सब कुछ रेडी रख देगा। जब वो एग्जीक्यूट करना चाहेगा तो वो खुद नहीं एग्जीक्यूट कर सकता है, बिकॉज
जीपी इज बिल्ड टू सर्व ऑल रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है, ऑल रिलेशनल डेटाबेसेस। इट कैन ऑल्सो वर्क, ये डिपेंडेंसी हमें पोस्टग्रेस के क्वेरी बनाने को हेल्प करेगा, ओरेकल के क्वेरी बनाने को हेल्प करेगा, इवन H2 डेटाबेस है जो इंटरनल यूज कर सकते हैं उसको भी बनाने के लिए ये हेल्प कर सकता है, करता है बेसिकली। बट हर एक डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए उसका ड्राइवर अलग होता है, वो ड्राइवर हमें ऐड करना ही पड़ेगा, सेपरेट है वो, इट इज नॉट सेम। इम्तियाज, हाँ ऐसे अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, हाँ डोंट हेजिटेट। यहाँ पे कोई नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है, किसी को कुछ लेना देना है नहीं, सब लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ रहा है, पुट द क्वेश्चन इनटू द चैट एंड आस्क, आई विल बी हैप्पी टू सी मोर क्वेश्चंस कमिंग इन, ठीक है, rather than just feeling नो अरे होता होगा ऐसे ही। कुछ खुद ब खुद समझने की कोशिश मत करो, पूछो। अनघा, अनिकेत, परेश, इम्तियाज ऑलरेडी पूछ रहा है, कौसर आपको भी। हम्म सो अगर आपको लग रहा है ना कि ये कुछ तो किया है, मुझे पता नहीं चल रहा क्या किया है ना, ऐसे ही होगा, में भी खुद से मत ढूंढो कि अरे हाँ ऐसे ही होगा, नहीं, पूछो कि ऐसे ही क्यों। आई लाइक पीपल हु आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपने यहाँ पे थोड़ा सा अलग चलता है, आपको पता चल गया होगा अभी तक, है ना। तो अपने यहाँ पे थोड़ा सा अलग चलता है। आई अप्रिशिएट पीपल व्हेन दे आस्क क्वेश्चन, इट मीन्स दे आर थिंकिंग। अगर आप ऐसे ही सिर्फ सुन रहे हो, हाँ हाँ कर रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर जस्ट लिसनिंग। इफ यू आर यूजिंग नो एसक्यूएल डीबी देन डू वी नीड टू डू फॉर द सेम। अगर मैं नो एसक्यूएल यूज कर रहा हूँ तो मुझे, मेरे पास एक जेपी का अलग वर्जन है, ठीक है। सो मोंगो अगर मैं यूज कर रहा हूँ, मोंगो, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, हाँ। तो मोंगो के लिए मुझे स्प्रिंग डेटा मोंगो डीबी ये वाला डिपेंडेंसी लगेगा। स्प्रिंग डेटा ही है, देखो डेटा जेपी है और डेटा मोंगो डीबी है। तो वहां पे डेटा जेपी लगता है, यहाँ पे डेटा मोंगो डीबी लगता है, यही फर्क है। तो इसमें कनेक्टर नहीं लगता, ये डायरेक्टली मोंगो डीबी को कनेक्ट कर देता है। तो ये डेटा जेपी है, वहां पे डेटा मोंगो डीबी लगता है, इतना है। मोंगो डीबी के केस में मुझे कनेक्टर नहीं लगेगा, ये ड्राइवर नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर इसका ड्राइवर, हाँ नहीं होता, नहीं होता वो, एक ही है ना, मंगोडी भी अकेला ही है। तो फिर वहां पे अगर आपको रेडिस के साथ कनेक्ट करना है या फिर कैसेंड्रा के साथ कनेक्ट करना है ना, तो हर एक के लिए अलग है। मतलब कैसेंड्रा इज नो एसक्यूएल अगेन, तो अपाचे कैसेंड्रा देखो ये नो एसक्यूएल है, तो इसको कनेक्ट करना है तो देखो स्प्रिंग डेटा फॉर अपाचे कैसेंड्रा, तो इसको ड्राइवर के साथ ही मिलता है वो, ठीक है। या फिर अगर आपको रेडिस के साथ कनेक्ट करना है, शायद रेडिस रिलेशनल है, नहीं नो एसक्यूएल ही है, रिएक्टिव रेडिस। तो तो वो उसको एडिशनल ड्राइवर नहीं, वो कर देगा। तो दीज आर नो एसक्यूएल एग्जांपल, कैसेंड्रा, रेडिस एंड मोंगोडीबी, ये तीन ही मेरे को पता है, और भी होते हैं, नहीं इतना नहीं किया है, मतलब इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, ठीक है। अ, और फिर क्लाउड के अपने अपने खुद के होते हैं, वो भी है। हाँ कैसेंड्रा बोला ना मैंने, अभी क्या रहा, कैसेंड्रा नहीं दिखाया गया मैंने, हाँ वही तो दिखाया। हम्म ठीक है, चलो, आई होप यू आर क्लियर। वंस यू क्रिएट द प्रोजेक्ट, ओपन द प्रोजेक्ट एंड यू जस्ट नीड टू डू वन सेटअप। इसमें कंट्रोलर वगैरह नहीं बनेंगे, इसको सिर्फ रजिस्ट्री के साथ कनेक्ट करवाना है आपको। तो हम क्या करेंगे, ये अगर आप ऐसे ही प्रोजेक्ट रन करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाके कुछ चेंजेस करने हैं ताकि ये प्रोजेक्ट चल जाए, ठीक है। बिकॉज हमने जेपीए डाला है बट उसके ऊपर काम नहीं किया है। आई वुड रिकमेंड यू टू बिल्ड योर ओन लॉजिक फॉर कंट्रोलर्स। ये आपका टास्क मैं आज दूंगा, कल मैं चेक करूंगा इवनिंग 8 PM कि आई वांट यू टू बिल्ड योर ओन ऑर्डर सर्विस। ऑर्डर में क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, शायद जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है 7 डे चैलेंज में उनको पता है। इससे मुझे याद आया, कौन कौन था यार, कौसर, यू आस्क फॉर द प्रोजेक्ट बट यू हैव नॉट जॉइन द 7 डेज वाला चैलेंज जहाँ पे प्रोजेक्ट का डेमो देना था आपको। हम्म तो हम कल मीट कनेक्ट किए थे, राजीव वॉज देयर, और कौन था, और ईश्वर वॉज देयर। हम्म कल मतलब हाँ कल ही यार, इट इज यस्टरडे इवनिंग का ही बात है। सो वेन एवर वी होस्ट एनी सेशन यू गेट अ नोटिफिकेशन इन एडवांस, ठीक है। मैं सबके लिए वापस दिखा रहा हूँ, तो आपको पहले से ही पता होता है हमेशा। अगर आप क्विकली हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा चेक करो, आई हैड जॉइंड एनुअल फंक्शन, ओके नो प्रॉब्लम। So make sure you do not miss out on the next time when we will host something like this. I would like to see your demonstration. तो आपके पास देर इज अ सेक्शन कॉल्ड एज वर्कशॉप, या फिर होम स्क्रीन पे भी आपको दिखता है अपकमिंग क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि व्हाट इज योर कैलेंडर, है ना।
तो हम इस डे पे आपको आपके कितने सेशन है, अभी यहाँ पे पाइथन भी आ रहा है हमारा, बट आपको आपका ही दिखेगा जिस कोर्स को आप एनरोल हो। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि फ्राइडे को, जो भी फ्राइडे आएगा, तो आपका वीकली ग्रोथ सेशन है 10 बजे, और इवनिंग को अपना नॉर्मल ट्रेनिंग है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू विल बी एबल टू सी। ठीक है, जिनका जावा है उनको जावा और पाइथन दोनों दिखेगा। सो मेक श्योर यू ऑलवेज टेक अ लुक एट इट कि यार नेक्स्ट क्या, इस वीक का क्या प्लान है, मेरे साथ क्या क्या सेशंस हैं। जब आपका 7 डेज का वर्कशॉप रहेगा तो आपको ये सबको अटेंड करना है गाइस। आई एम जस्ट रीट्रेटिंग सेकंड टाइम अभी। वी आर हैविंग 7 डे वर्कशॉप ऑन स्प्रिंग एआई। किधर गया? 21, 22, 23 सबको अटेंड करना है कंपल्सरी। इट इज 800 रुपीज फॉर अदर पीपल, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री है इसलिए ऐसे मत समझना कि नहीं करूंगा, करना। ठीक है, इट इज 7:30 ऑन दिस डे एंड 11 ऑन सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, सो मेक श्योर यू बी देयर, लर्न द थिंग्स एंड बुक योर वीकेंड। किधर भी मत जाना, बहुत एसेंशियल है। मैं इंटरव्यू, इसके बाद मैं सबका इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल करूंगा। आगे नेक्स्ट मंथ में हम लोग पूरा फोकस करेंगे, मतलब टॉपिक्स भी पढ़ाएंगे, बट मोस्ट फोकस, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट मंथ में तुम प्रॉपर रेडी हो चुके हो इंटरव्यू के लिए। इस तारीख से मैं आपको रेफर करना शुरू कर दूंगा, सबको ही। और दैट्स द गोल। ठीक है, जब तक आपका बैच कंप्लीट हो जाए, एटलीस्ट आपने एटलीस्ट एक इंटरव्यू तो दिया होना चाहिए, ताकि आपको एक्सपीरियंस आ जाए। तो आई एम गोना सेट अ चैलेंज ऑफ फर्स्ट इंटरव्यू फॉर एवरीबडी। तो वो 1 तारीख से सेट होगा चैलेंज, और आपको अप्लाई करना है। रेफरल को मैं अपडेट करूंगा, और आपको एक इंटरव्यू एटलीस्ट देना है, और फिर उसका एक्सपीरियंस हम लोग मिल के बात करेंगे, और मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा कि इसको कैसे बेटर बना सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज फॉर एवरीबडी। Hmm? I don't want you, any one of you to miss out the session that I'm hosting 21, 22, 23. Hmm? Make sure you cancel the plans, because it is not going to come again. मैं आपको बोल रहा हूँ कि this is going to come again in the December last में आएंगे वापस। हाँ, 25, 26, 27 में, तो या फिर इधर हमने सोचा नहीं अभी तक, बट इट विल टेक एटलीस्ट 20 days मोर। तो मिस मत करिए, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज मैं उसी बेसिस पे इंटरव्यू शेड्यूल करने वाला हूँ कि मेरे बच्चों को स्प्रिंग एआई आता है, तुम ले लो करके। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता है तो मेरा इज्जत जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं रेफरिश नहीं करूंगा, तुम लोग अटेंड नहीं किए तो। ठीक है, ऑलराइट, आगे जा रहे हैं हम लोग। तो क्या कर रहे थे? अ, हम लोग कर रहे थे प्रोजेक्ट। तो यू आर सपोज टू ऐड द कोड ओवर हियर, सो आई एम जस्ट क्विकली शेयरिंग। तो इसमें देखो, ये पुराना ही है, ये आपके पहले एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से आप उठा सकते हो, कॉपी पेस्ट करिए। मैं आपको एक ही लाइन दूंगा ये, जो कि नया है। जो आपका रेस्ट एपीआई का प्रोजेक्ट है ना, उधर से बाकी चीजें उठाइए। सिर्फ आपको पोर्ट नंबर डालना है, इंपॉर्टेंट है, आपको पोर्ट नंबर डालना है 8081। और आपको ये नया वाला यूआरएल है, इसको ऐड करना है। इस टाइम मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप कॉपी करिए। नेक्स्ट जो अपना दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें जब ऐड करेंगे तो आपको लिखने को बोल दूंगा मैं। हम्म? तो अभी हो क्या रहा है, पहले समझिए कि दिस एप्लीकेशन वट एवर आई एम क्रिएटिंग विल एक्ट एज यूरेका का क्लाइंट, और वो सर्विस यूआरएल जो है, वो यूआरएल कनेक्ट करेंगे हम इसको। मतलब दिस क्लाइंट विल कनेक्ट टू दिस यूआरएल। देखो, इस यूआरएल मतलब ये यूरेका सर्वर का यूआरएल है, 8761/यूरेका। ये जब भी अप होगा तो इस यूआरएल को कनेक्ट करके उधर रजिस्टर कर देगा। ठीक है, तो हम उसको सिर्फ बता रहे हैं कि भैया तुमको इधर इसको ढूंढना है, कनेक्ट करो वो, और रजिस्टर कर दो खुद को उधर, तो फिर आप एक माइक्रो सर्विस का पार्ट हो जाओगे। अगर नहीं हो, ये यूआरएल नहीं होगा, तो आप माइक्रो सर्विस नहीं बन सकते। I just shared in chat, go to your application.properties, ये वाला कोड आपके पहले वाले प्रोजेक्ट से ले लेना, और पोर्ट नंबर इंपॉर्टेंट है गाइज, ये डाल देना, अदरवाइज वो सेटअप नहीं होगा। चलो, एडेड। 9:35 हुआ है हमारा, 10:30 तक है सेशन, बहुत टाइम है। 2 लाइन्स यू हैव टू ऐड। डन। रिस्टार्ट, स्टार्ट करिए ये वाला प्रोजेक्ट। अगर आपका डन हुआ है, 2 ही लाइन ऐड करना था, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए। मेक श्योर देर आर नो एरर्स। गो टू द बूट डैशबोर्ड। आई एज्यूम सबके पास बूट डैशबोर्ड अभी इंस्टॉल्ड है। ऑर्डर सर्विस का प्रोजेक्ट आपने नया बनाया है, और इसको आपको करना है स्टार्ट। किधर से करना है? इधर से स्टार्ट करना है। और कंसोल में जाके चेक करो कि वो सब कुछ सही चल रहा है क्या।
इफ इट इज स्टार्टेड, नीड टू ऐड डेटाबेस प्रॉपर्टीज, नीड टू ऐड, हाँ डेटाबेस की प्रॉपर्टीज ऐड नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। हमने जेपीए डाला है। डेटाबेस की प्रॉपर्टी मैंने बोला ना आपको, पहले वाले प्रोजेक्ट से कॉपी करो। इधर है तुम्हारा पहला वाला प्रोजेक्ट, स्प्रिंग एआई वाला हमने बनाया था लास्ट 2 वीक्स में, हमने उसी पे काम किया था। उधर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आपको मिलेगा। डेटाबेस का नाम वही रख दो, उसी के अंदर एक टेबल बना देगा ये। कॉपी पेस्ट कर देना उधर से। Let me know once your project is running. Type in R if your project is running. Can you explain which project to start? Yes, Paresh. We have to start the project that we just created without, which do not have any code at all. इसका नाम है ऑर्डर सर्विस, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको ये टास्क देने वाला हूँ कि कंट्रोलर एंटिटी रेपोजिटरी आप खुद बनाएंगे और ऑर्डर सर्विस को अच्छा बनाएंगे। अनिकेत सिंह रेडी? ईश्वरी सिंह डन। मैं और 2 मिनट के लिए रुकूंगा। जिनका हो चुका है रनिंग, जिनको एरर आ रहा है, कैन यू प्लीज क्विकली पुट द एरर्स इनटू द चैट। एरर भेजिए, मेरे को पता है इसमें एरर आएंगे अभी कुछ लोगों के, बिकॉज उन्होंने एक तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में फाइल नहीं डाला होगा या फिर कुछ तो गड़बड़ किया होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट आप मेरे साथ करिए समझ जाएंगे। तो जो लोग ये सेकंड टाइम कर रहे हैं ना ये वाला एक्टिविटी, तो आपकी ये दिमाग में अभी बैठेगा, अरे यार ऐसे ऐसे करना है, क्लिक हो जाएगा। जितना आप रिपीट कर पाओगे ना खुद को, देखो पहली बार अगर आप कोई कॉन्सेप्ट सीखते हो ना तो आपको लगता है हाँ यार कुछ तो है, समझ गया। बट उसको सेकंड टाइम करते हो ना तो आपका माइंड परमानेंटली उसको रजिस्टर करवाता है। ठीक है, इसलिए मैं, अगर आपने अगर नोटिस किया तो मैं मेरे सारे टॉपिक्स का सेशन है ना, हर एक जो भी टॉपिक है हमारे सिलेबस में। हाँ, इम्तियाज बोला अभी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, यस गुड, दैट इज मेरे को पता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना सारे के सारे, उसका 10% पार्ट, 10% या फिर मैक्सिमम 20% पार्ट मैं हमारे वर्कशॉप में कवर करवाता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे ये स्प्रिंग हमारा एआई का जो वर्कशॉप होगा अभी, इसमें कुछ चीजें होंगी जो आपको लगेगा यार क्या तो कर दिया, मेरे को समझ में नहीं आया, बट आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। जब हम इसी चीज को करेंगे दिसंबर में वापस, 15 दिसंबर से या फिर 8 दिसंबर से, देखना पड़ेगा कब स्केड्यूल में है आपके। शायद इधर ये होगा ऑथ, यहाँ पे एआई शुरू करेंगे, इधर ही है। तो उस टाइम पे देखोगे तो हम लोग और डिटेल में जाएंगे, तब आपको मजा आएगा उसमें, अरे यार ये बहुत तगड़े लेवल का काम चल रहा है। मीन स्टार्टेड एंड इट इज नॉट स्टार्टेड। हाँ हाँ, वो एंड में सिर्फ आपको ये देखना है कि 200 नहीं, पोर्ट रनिंग है क्या। हम्म देखो ये डिस्कवरी क्लाइंट ऑर्डर सर्विस टेक एम्पलीफायर्स वीवी राउटर अपडेटिंग द पोर्ट टू 8081। ये है क्या, अगर आपका रनिंग हो गया तो आपको वापस जाना है हमारे यूरेका सर्वर के पास, और यूरेका सर्वर पे देखो यहाँ पे नो इंस्टेंस अवेलेबल है, हम लोग करेंगे रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करेंगे आपको दिखेगा ऑर्डर सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है, ये अप है, और मैं यहाँ पे ऑर्डर सर्विस को देख सकता हूँ। So type in up if your order service is up and you are able to see it over here on Eureka. अगर दिख रहा है तो टाइप करिए, अगर नहीं दिख रहा है तो नो टाइप करिए, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। हम लोग पॉज लेंगे यहाँ पे, सबका दिख रहा है, परफेक्ट, शोइंग परफेक्ट। 4 लोगों का हो गया। अनगा अंटिल आई डोंट सी योर्स, हम लोग आगे नहीं जाएंगे। कौसर को भी, हाँ कौसर का भी दिख रहा है मुझे रिस्पॉन्स। होते सर बट टाइम लगते थोड़ा, बरं ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट आई वॉन्ट यू टू डू इट। ठीक है, तो क्या होता है ना कि इसके लिए ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा अनगा, वी विल होस्ट वन सेशन ऑन माइक्रो सर्विसेज इन दिसंबर। 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा,
3 दिन के वर्कशॉप में सिर्फ और सिर्फ हम लोग माइक्रो सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मतलब इसका डेट एंड ऑल यू कैन गेट फ्रॉम टेक एम्पलीफायर्स का डेवलपर का ग्रुप। तो यू विल गेट एन अपडेट्स। इमरजेंसी यूरेका में भी इनकरेक्टली गेम, वो रहने दो, फर्स्ट टाइम आप रन करते तो वार्निंग दे रहे हो, लेट इट बी एज इट इज, सेकंड टाइम करेंगे तो नहीं करें। अभी मैं बताता हूँ क्यों, क्या हो क्या रहा है। देखो, यूरेका इज क्लेमिंग दैट इंस्टेंसेस आर अप व्हेन दे आर नॉट। मतलब ये बोला कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये जो सर्वर है वो अप है, ठीक है, बट देर इज नथिंग टेक एम्पलीफायर्स डॉट बीबी राउटर, ये लोकेशन है ही नहीं अवेलेबल कंप्यूटर पे। हाँ, ये टेक एम्पलीफायर्स यहाँ पे दिख रहा है, मेरे लैपटॉप का नाम टेक एम्पलीफायर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे आपके लैपटॉप का नाम दिख रहा होगा। अगर आप करोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे होस्ट नेम, होस्ट नेम, होस्ट मतलब अपना लैपटॉप का नाम, तो मेरे लैपटॉप का नाम है टेक एम्पलीफायर्स, इधर वो टेक एम्पलीफायर्स इसीलिए आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप आपके सिस्टम में देखोगे आपका लैपटॉप का होस्ट नेम क्या है, वही होस्ट नेम यहाँ पे आ रहा होगा। बीबी राउटर इज ब्रिज राउटर जिसके साथ वो कनेक्टेड है, और यूआरएल है वो ऑर्डर सर्विस, और ये पोर्ट नंबर है। जब भी कोई बाहर से आएगा तो ऑर्डर सर्विस /8081 को कनेक्ट करना चाहेगा, तो वो यूरेका सर्वर उसको कनेक्ट करने के लिए अलाउ कर देगा, ठीक है। सो दैट्स द होल गोल। एक सर्विस आपका अप हो गया है। अभी इसके आगे वाले 20 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कीप एवरीथिंग अवे एंड जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन, बिकॉज एक इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे एक स्टूडेंट को कि अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो स्प्रिंग बूट में बना है, जो कि हमारा रेस्ट एपीआई है, उसको आपको न्यू एज अ माइक्रो सर्विस किसी एक एग्जिस्टिंग सिस्टम में डालेंगे कैसे। मतलब आपका ये माइक्रो सर्विस रनिंग है ऑलरेडी, ये आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, ये यूरेका है, इसमें ऑलरेडी सर्विसेज है, और यहाँ पे आपने जो नया प्रोजेक्ट बनाया है उसको करना है ऐड। तो क्या क्या करना पड़ेगा आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है, तो आपको भी नेक्स्ट इंटरव्यू में आ सकता है। तो सब लोग अपना सब कुछ छोड़ेंगे, मतलब इधर उधर जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ फोकस करेंगे। मैं जब बोलूंगा नोट करना तब नोट करना, फोकस। स्टेप नंबर 1, अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो स्टेप नंबर 1 मैं पहले करूंगा, मैं जाऊंगा pom.xml में, और pom.xml में डालना है एक डिपेंडेंसी। क्या डिपेंडेंसी का नाम बोला था हमने, नोटपैड में लिखा था हमने, डिपेंडेंसी का नाम है ये, क्या, क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर सर्वर, ठीक है। मैं ये कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और आपको कहाँ पे मिलेगा ये डिपेंडेंसी, आपको मिलेगा आपके ऑर्डर सर्विस के प्रोजेक्ट में। ऑर्डर सर्विस के प्रोजेक्ट में जाइएगा, फिर यहाँ पे जाना है आपको उसके फॉर्म में, ऑर्डर सर्विस जो बने ना आपने मेरे साथ, हम्म तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाना है, डिपेंडेंसी सेक्शन में स्क्रॉल डाउन करना है। ये एक्चुएटर क्यों डाला है मैंने, कुछ काम से डाला होगा, वैलिडेशन भी कुछ काम से डाला होगा, डेव टूल्स कनेक्टर जे, और ये नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट। तो ये डिपेंडेंसी सेक्शन में आपको दिखेगा, नेटफ्लिक्स करके सर्च करना तो डायरेक्टली मिल जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिएगा, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से करना है कॉपी, और फिर जाना है आपके रेस्ट एपीआई के प्रोजेक्ट में, जो ओल्ड प्रोजेक्ट है हमने कल बनाया था लास्ट वीक, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे उसको पेस्ट, ठीक है। ये इसमें बहुत कुछ किया था हमने, ये बड़ा प्रोजेक्ट था एज कम्पेयर टू टूडेज थिंग, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट ऐड कर दिया, जैसे मैंने ऐड कर दिया उसने एरर देना शुरू कर दिया, ठीक है। सिर्फ इतना डिपेंडेंसी ऐड करके नहीं होता है, मतलब इंटरव्यू में जब आप आंसर करोगे तो सिर्फ आप इतना ही बोलोगे कि यू हैव टू ऐड नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट, दैट्स इट। बट कोड करते टाइम आपको सिर्फ इतने से नहीं होता, ये क्लाउड का वर्जन है, राइट, स्प्रिंग क्लाउड की कैटेगरी में आता है, तो क्लाउड का वर्जन भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जाएंगे pom.xml में वापस, और वापस जाके कहाँ पे गए मेरा पॉम, हाँ यही है मेरा pom.xml, इधर जाएंगे, और इसके क्लाउड का वर्जन देखो यहाँ पे, जावा वर्जन के जस्ट नीचे स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन है, उसको करेंगे कॉपी, और रेस्ट एपीआई में वापस आएंगे, रेस्ट एपीआई में आ गए, और रेस्ट एपीआई में स्क्रॉल करेंगे, मुझे कहीं पे मिलेगा प्रॉपर्टीज में जावा का वर्जन, इट शुड बी ऑन लाइन नंबर 30 बाय डिफॉल्ट। इस लाइन पे आना है, लाइन नंबर 30 पे करना है एंटर। चलो आप अपना ढूंढिए, 2 चीजें ये करिए क्विक मेरे साथ। नंबर 1 is add find the dependency in your order project and copy it into your REST API project। दूसरा स्टेप, ऑर्डर प्रोजेक्ट में वापस जाना, स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन ढूंढना, वो प्रॉपर्टी सेक्शन में रहेगा जावा वर्जन के जस्ट नीचे, और उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना अपने
दूसरे प्रोजेक्ट में जो रेस्ट एपीआई है जिसको हम लोग अनबोर्ड करना चाहते हैं माइक्रो सर्विसेज में, कर दो और लेट मी नो वंस यू आर डन। दिस इज सेकेंड पॉइंट। ये स्टेप 1 ही है, इसमें से पॉइंट नंबर 2 है। नोट भी कर सकते हो पैरेलली आपको अगर याद रखना है इसको। एंड लेट मी नो वंस यू डन। डन, परफेक्ट। चलो नाउ किधर गया मार्क्स? हियर इट इज। सर ये एरर को कैसे निकालना है फॉर्म वाली? हाँ निकाल रहे हैं, रुकिए जरा पर। दिस स्टेप पॉइंट नंबर 2 इन योर फॉर्म। पॉइंट नंबर 3 ये है कि ये डिपेंडेंसी अभी भी नहीं गया, एरर नहीं गया है। तो आपको और एक चीज लगेगा, पुराने फॉर्म में वापस जाओ। सही, पुराना नहीं, ये नया प्रोजेक्ट है, ऑर्डर वाला आज अभी बना है हमने। उसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, डिपेंडेंसीज खत्म होने के बाद आपको बिल्ड वर्जन दिखेगा। उसके बाद आपको, या फिर उसके पहले भी दिख सकता है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, और वो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में क्लाउड का डिपेंडेंसी मैनेज होता है। तो ये वाला टैग आपको पूरा लगेगा, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से आपको कॉपी करना है। कॉपी कर दीजिएगा। जो आपने ऑर्डर का प्रोजेक्ट बनाया उसको जाएंगे कल वाले प्रोजेक्ट में, लास्ट वीक वाले प्रोजेक्ट में, बिल्ड के बाद करेंगे रिक्वेस्ट। दैट्स इट। और अभी आप देख सकते हो आपका एरर गया है, फॉर्म वाला एरर चला जाएगा जैसे ही आप इतना करोगे तब। मेक श्योर यू सेव द फाइल। मैंने बहुत बार देखा है आपका, जब मैं रिव्यू करता हूँ आप लोग फाइल कभी कभी सेव नहीं करते हो, सो विच इज द रॉन्ग हैबिट। डू नॉट फॉल फॉर दिस। वंस यूर डन सेव द फाइल और देखिए कि एरर गया, चला गया क्या। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज टू ऐड द डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी ऐड करेंगे तो सिर्फ डिपेंडेंसी कॉपी करके नहीं होता है, आपको क्लाउड का वर्जन, सेकंड थिंग क्लाउड का डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, थर्ड थिंग ये 3 चीजें डिपेंडेंसी में कॉपी करनी है। डन, एरर गया। सब लोग कंफर्म करेंगे एक बार? यस, परिचय सिंह, यस। ये हुआ स्टेप नंबर 1। इतने से ही नहीं होता है, स्टेप नंबर 2 है, हमें जाना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, ये रिसोर्सेस में है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, इसको यूज करेंगे। और इसमें हमें ऐड करना है वो लाइन जो मैंने आपको दिया था कॉपी करके, कुछ टाइम पहले दिया था। मैं चैट में से ही कॉपी कर रहा हूँ, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, या फिर उधर जाके देखते चलो। ये प्रोजेक्ट में जाएंगे ऑर्डर सर्विस वाले, उसमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हमने ये लाइन ऐड किया था, वही लाइन को आपको करना है कॉपी इधर से, और फिर ये लाइन ऐड करने से वो क्या करेगा, उधर रजिस्टर कर देगा। तो ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, इसमें हम लोग करेंगे पेस्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको देना पड़ेगा सर्वर का नंबर, वो नहीं दिया है हमने, नहीं तो ये नहीं लेता है। सर्वर डॉट पोर्ट इज इक्वल टू 8080। मतलब ये कल का प्रोजेक्ट था जो 8080 पे रन था। आज मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है
जो 80.8.0.1 पे रनिंग है, ठीक है। और सर यूरेका सर्वर तो 6787 क्या तो था उसका पोर्ट। तो चलो ये दो चीजें करना हमेशा, कि पोर्ट नंबर और सर्विस का यूआरएल डालना है, एंड दैट्स इट। 8761 ईश्वर, करेक्ट। तो इंटरव्यू में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि यूरेका सर्वर कौन से पोर्ट पे रनिंग है, तो नंबर भी याद रखना भैया। ऐसा नहीं है, कुछ भी पूछते हैं लोग, तो जस्ट चेक करते कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा थर्ड प्रोजेक्ट। तो रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट जो कल किया था, जिसका कुछ लेना देना है नहीं आज के प्रोजेक्ट से, बट फिर भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को मैं कर सकता हूँ ऐड इन माई न्यू माइक्रो सर्विस easily by doing these two steps. Step number one, add the dependencies. Step number two, modify the configurations in application or Java. मतलब URL मेंशन करो API गेटवे का, सॉरी यूरेका सर्वर का, दैट्स इट। These are two steps only that you are supposed to follow. Make run the project, जो पुराना प्रोजेक्ट उसको रन करिए, एक बार कंसोल में चेक करेंगे कि रन हो रहा है क्या ठीक से। हो गया, ठीक है। नेटफ्लिक्स डिस्कवरी क्लाइंट यहाँ पे दिख रहा है, नेटफ्लिक्स। चलो हम लोग जाएंगे आगे। कहाँ पे जा रहे थे हम लोग? हम लोग चेक करेंगे इधर कि भैया मेरा और ईपी रेस्ट ईपी वाला आया क्या। तो रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और अभी देखो ये इमरजेंसी आया मेरे को मैसेज। ये ऑर्डर सर्विस तो पुराना रजिस्टर था, रेस्ट एपीआई पहली बार रजिस्टर हुआ है। सो दैट इज व्हेन आई एम सीइंग दिस पर्टिकुलर एरर कि ये रेस्ट एपीआई सर्वर है, जो कि अभी तक इसको नहीं पता है कि मेरे पास है। यूरेका सर्वर में भी इनकरेक्टली क्लेमिंग दैट सर्वर्स आर अप व्हेन दे आर नॉट। तो ये वार्निंग है, सो इग्नोर इट एज ऑफ नाउ। तो ये कुछ देर बाद वापस इसको रिस्टार्ट करके तो चला जाता है। फर्स्ट टाइम अगर कोई रजिस्टर होता है तो वार्निंग आता है, समझ नहीं पाता है वो, ठीक है। वंस यू आर एबल टू सी टू माइक्रो सर्विसेज रनिंग एंड अप, all up, yes, type in all up. Do we have to keep server number for each microservice different? सर्वर नंबर नहीं, पोर्ट नंबर डिफरेंट रखना पड़ेगा सबके लिए। पोर्ट नंबर विल बी ऑलवेज डिफरेंट फॉर, अभी ये लोकल पे कर रहे हैं इसलिए। क्लाउड पे यूआरएल मिलता है ना, तो हर एक का यूआरएल अलग रहता है। लोकल पे करेंगे तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? पोर्ट से ही तो डिस्टिंग्विश करेंगे। चलो टाइप इन ऑल अप इफ बोथ द माइक्रो सर्विसेज आर अप एंड रनिंग एंड शोइंग वेरी easily onto your Eureka server. I had some issues in the product controller class, which I missed, no problem. प्रोडक्ट कंट्रोलर कल के इसमें इशू था, ठीक है। कुड यू प्लीज पेज दैट प्रोडक्ट कंट्रोल क्लास? श्योर, व्हाई नॉट। कल आपने कुछ गलती किया होगा फिर, कल मतलब फ्राइडे को, फ्राइडे को नहीं था, उसके पहले था। किधर गया मेरा प्रोडक्ट कंट्रोलर? ऑर्डर को किया बंद, प्रोडक्ट को किया ओपन, प्रोडक्ट कंट्रोल क्लास हियर, प्रोडक्ट कंट्रोल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ पूरा, देखते आता है क्या। परेश इज शोइंग सम एरर, हाँ दोनों आप है, गुड परेश। ये ज्यादा हो गया, इंपोर्ट निकालना पड़ेगा, 1700 लाइन से, बाप रे। अब हो गया। Just for Imtiaz, I have just shared the code, and I want this sort of screenshot from everybody into the chat. Quick. यार ये निकालना पड़ेगा मेरे को, क्यों आता है ये इंटरव्यू प्रेप का? एक सेकंड रुकिए, मैं बंद कर दिया उस टास्क को कभी। हमेशा हमारे सेशन में आता है। ठीक है, एक सेकंड मैं उसको करता हूँ कैलेंडर पे। राजीव इज हैविंग ऑल सर्विसेज अप, गुड। Delete this and following event, delete, don't send.
This is a warning, Paresh. You can read it what it is saying कि ये इनकरेक्टली दिखा रहा है कि सर्विस अप है और वो नहीं है, बट वो नहीं करेक्ट, स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है. कमेंट कर दो इम्तियाज, द लाइन वेयर यू आर गेटिंग द एरर, कमेंट कर दो. पूरा का पूरा होने की कोई जरूरत है नहीं इस टास्क के लिए. जिस कोड में आपको एरर है उसको कमेंट कर दें. चलो बाकी लोग, मेरे को दो ही स्क्रीनशॉट मिले हैं जिनका दोनों सर्विसेज अप है. अदर्स व्हाट इज द स्टेटस? लेट मी जस्ट चेक. अनघा, अनिकेत, इम्तियाज, ईश्वर. ईश्वर का भी पेंडिंग है. कौन सर? परेश और राजीव भाई हुआ है. लास्ट दो लोग हुए, बाकी लोग क्या कर रहे हो? कौन लिफ्ट किया? ईश्वर लिफ्ट किया. ये क्या हो रहा है? दो लोगों का और हुआ क्या? व्हाट इज हैपनिंग? किधर माउस? इम्तियाज इज डन. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अदर्स गाइस. प्लीज बी फास्ट. आई कैनॉट वेट मोर. चलो, आई एम मूविंग फॉरवर्ड. Anaga, Aniket, what happened? Kausar, what happened? Are there any issue that you're facing? Do you need any help? सिर्फ आपको अप करना था. एरर क्या आ रहा है वो तो बता सकते हो कंसोल में देख के, या फिर एरर क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ है क्या? यस, एनीथिंग, आई जस्ट नीड दिस स्क्रीनशॉट. दैट्स इट. मैं आपको और 1 मिनट दूंगा ट्राई करने के लिए. जब तक मैं एक पोस्ट कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट करेंगे इधर. चैनल्स, जनरेटिव एआई. डन.
यस नो एनीथिंग, क्या आप बता सकते हो व्हाट हैपेंड? शायद और दो लोगों का हो चुका है। Sorry. Oh, what need to do? I got disconnected. So in real world, there must be a lot of applications source under this instance. Correct, Paresh. You're absolutely right. There are a lot of application needs to be done. So Ishwar, you are supposed to share the screenshot of this page जहाँ पे दो माइक्रो सर्विसेज अप है। Aniket, Anagha, can you please tell me what is the issue you are facing? Kaushar as well. अगर आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा, नहीं तो मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा आपको, है ना? ठीक है, आई लीव इट अप टू यू, वॉच द रिकॉर्डिंग एंड डू इट लेटर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे जा रहे हैं हम लोग। आई वेटेड ऑलरेडी 2-3 minutes, आई कैनॉट वेट मोर। ठीक है, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एज गेटवे। समथिंग कॉल्ड एज एपीआई गेटवे, सो जो आपको देखना है ना? तो जो सर्विस डिस्कवरी है उसको अगर दूसरे अपडेट के साथ, दूसरे एपीआई के साथ कनेक्ट करें तो रेस्ट टेम्पलेट यूज किया जाता है। इसको हम लोग कल के सेशन में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, रेस्ट टेम्पलेट विल बी यूज। एपीआई गेटवे देखते हैं कि एपीआई गेटवे क्या है। सो इट इज सिंगल एंट्री पॉइंट फॉर ऑल एपीआईज। जितने भी आपके पास एपीआईज है उसके लिए ये सिंगल एंट्री पॉइंट है। ठीक है, ईश्वर का बन गया। इट हैंडल्स राउटिंग, ऑथेंटिकेशन, रेट लिमिटिंग, लॉगिंग, सब कुछ ये हैंडल कर देता है। इट इज बिल्ड यूजिंग वेब फ्लक्स। कोई तो मुझे पूछ रहा था वेब फ्लक्स क्यों ऐड किया, तो ये एपीआई गेटवे बना ही ये है वेब फ्लक्स यूज करके, तो इसीलिए उसमें वो ऐड किया है डिपेंडेंसी। ठीक है, लाइक रिएक्टिव प्लस हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग। तो दिस इज एपीआई गेटवे इज बिल्ट यूजिंग वेब फ्लक्स। ठीक है, तो ये इसी को यूज करके बना है, दैट इज व्हेन इट इज वेरी पावरफुल। आप सबको इसके आगे जाके क्या करना है, अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो आपको रिएक्टिव प्रोग्रामिंग सीखना है। जावा में रिएक्टिव प्रोग्रामिंग कैसे होता है ये सीखना है। ठीक है, एपीआई गेटवे को ऐड करने के लिए क्लाउड डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी गलत है, मेरे पास है करेक्ट डिपेंडेंसी जो चलता है वो करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे उसका राउटिंग। राउटिंग में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा और फिर हम उसको पाथ देंगे, वो चल जाएगा। हम्म फिर फिल्टर आज नहीं करेंगे, फिल्टर हम लोग कल करेंगे कि रिक्वेस्ट आएंगे तो उसको फिल्टर कर सकते हैं जब मैं कनेक्शन करूंगा तो ये गेटवे रिटर्न्स कंसोलिडेटेड रिस्पांस नहीं चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस पे आएंगे कुछ टाइम में। चलो मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ आर्किटेक्चर और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं एपीआई गेटवे को। जैसे एपीआई गेटवे को कोई कॉल करेगा, एपीआई गेटवे विल बी ऑट, मतलब जैसे ही उसको बिल्ड करेंगे उसी टाइम पे उसको इधर रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो अभी पोस्टमैन से जब कोई कॉल करेगा तो ये इमेजिन करना कि जब क्लाउड पे डिप्लॉय होता है प्रोडक्शन में तो अंदर वाले सर्विसेज बाहर एक्सपोज नहीं होते हैं। तो हु विल बी अवेलेबल फॉर क्लाइंट टू एक्सेस एपीआई गेटवे, ये वाले सर्विसेज डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होंगे, उसको वीपीएन के अंदर डाल के एक्सेस रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, तो रेस्ट एक्सेस ओपन किसका होगा, एपीआई गेटवे का। तो एपीआई गेटवे को हिट करेंगे बाहर से लोग, क्लाइंट होंगे मोबाइल ब्राउजर या फिर पोस्टमैन, एपीआई गेटवे को हिट करेंगे और वही हिट किया हुआ एपीआई गेटवे को जो रिक्वेस्ट आया वही रिक्वेस्ट के लिए वो ढूंढेगा कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सर्विस मेरे को रिस्पॉन्स दे सकता है, जो भी यूआरएल रहेगा उसके हिसाब से वो रीडायरेक्ट कर देगा। सो दिस इज व्हाट इज होल गोल। हम जाएंगे और बनाएंगे एक हाँ एपीआई, से हम बनाएंगे एक नया प्रोजेक्ट। चलो सब लोग जाइए यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे वापस जाएंगे और हम लोग यहाँ पे नाम देंगे एपीआई गेटवे, एपीआई हाइफन गेटवे। इसमें से डिपेंडेंसी निकाल देना, हमें डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। डू नॉट ऐड डेव टूल्स के अलावा कोई भी डिपेंडेंसीज ऐड मत करना, नहीं चाहिए। वैसे एक ही चाहिए जो मैं कॉपी करके दूंगा वही ऐड करना है, स्प्रिंग सर्वर वेब फ्लक्स। वो अवेलेबल है नहीं, डायरेक्टली मैन्युअली नहीं मिलती है, तो इसलिए हम लोग उधर से ऐड कर देंगे। चलो एवरीबॉडी
ऐड ओनली वन डिपेंडेंसी डेव टूल्स और क्लिक ऑन जनरेट एपीआई गेटवे नाम का प्रोजेक्ट बनाना है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज करे, और उस एपीआई गेटवे नाम के प्रोजेक्ट को आपको करना है इक्लिप्स में ओपन। वंस यू ओपन इट लेट मी नो। एपीआई गेटवे फॉर्म देखेंगे, पहले डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, फॉर्म डॉट एक्सएमएल ओपन करना, ओपन। कौसर इज सेइंग अप, चलो कौसर का हो गया, गुड, कांग्रेचुलेशंस कौसर, आई एम रियली हैप्पी टू सी योर आउटपुट। So now you go ahead and yes, you go ahead and create a new project। मैं वापस एक बार दिखा रहा हूँ since you might not be there। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपको नाम सिर्फ चेंज करना है, एपीआई गेटवे, सारे डिपेंडेंसीज रिमूव करने हैं, सिर्फ डेव टूल्स रखना है और जनरेट करना है। Once you generated, open the project in Eclipse and type in O। Also said open, India said opened, or it said opened। 2 मिनट में दूंगा आप सबको। अनिकेत, अनघा, ईश्वर ने डाल दिया है, 4 लोग आ गए। 4 कौन रहेंगे? राजीव, हाँ राजीव पेंडिंग है। आई रिक्वेस्ट यू टू बी क्विक। ठीक है, एक और मिनट, 1 11 10 को हम लोग आगे जाएंगे। हम लोग वेट करें अनिकेत आपके लिए, और अनघा आपके लिए भी। परफेक्ट। कौन सी ओपन, आपको जाना है फॉर्म डॉट एक्सएमएल में। फॉर्म डॉट एक्सएमएल में आपको ऐड करना है डिपेंडेंसीज। कैसे छोटा होगा? हम्म, तो हमें यहाँ पे भी क्लाउड लगेगा, बट पहले समझते हैं कि अरे यूरेका तो मैं डालना भूल ही गया। यूरेका लगता है ना उसको यार, I forgot। ठीक है, कुछ नहीं, हम लोग डाल देंगे। सो वी नीड यूरेका का डिपेंडेंसी वापस तो करेंगे। मैं आपको पहले डिपेंडेंसी भेज रहा हूँ। आई जस्ट वांट यू टू ऐड दिस, देखो ये क्लाउड स्टार्टर गेटवे वेब, गेटवे सर्वर वेबफ्लेक्स, तो ये वेबफ्लेक्स का डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये क्लाइंट मिल जाता था वहां से, बट मैंने भूल गया, तो मैं यहाँ पे अभी को शेयर करो चैट में। Another side open. Perfect. I'm sharing the dependency in the chat. Open the project का pom.xml, go to the dependencies section, add these 2 dependencies। ये 2 डिपेंडेंसीज ऐड करने के बाद इमीडिएटली पहले ये स्प्रिंग क्लाउड वाला ऐड कर देना। ये भी उसके बाद इमीडिएटली वर्जन के यहाँ पे ऐड कर। रुको रुको रुको, एरर आएगा। ये 2 लाइन ऐड किए, उसके बाद पहले कंफर्म करो कि सबने 2 डिपेंडेंसीज और ये क्लाउड का वर्जन ऐड किया है क्या। ये ऐड करने के बाद आपको ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में ऐड करना है। ठीक है, बॉटम में जाइए, बिल्ड के बाद या फिर बिल्ड के ऊपर कहीं पे भी कर सकते हो, बस डिपेंडेंसी के बाद में करना है। और यू टू ऐड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ये तीसरा चीज आपको करना है ऐड उसी फाइल में। ये करने के बाद एरर चला जाएगा।
डन। डन, परफेक्ट। तो इसके एरर चले गए होंगे। हम्म। तो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सी द, इफ अगर आपको एरर दिख रहे हैं तो मुझे बता देना, ठीक है। दिस इज ओनली थिंग वी नीड टू डू। सेकंड, आई नीड टू गो टू द जावा फाइल। एक ही जावा फाइल है, उसके ऊपर हम लोग सेटअप करेंगे, उसको बोलेंगे यू विल एक्ट एज अ enable discovery client। तो ये दिस लाइन विल बी एडेड बिकॉज ये यूरेका सर्वर है, तो इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ रहा है हमें यहाँ पे कि डिस्कवरी क्लाइंट करके ऐड करो। अगर ये उसमें वेब फ्लक्स का डिपेंडेंसी नहीं होता तो हम लोग नहीं ऐड किए तो भी वो क्लाइंट बन जाता है, ठीक है। सो ऐड दिस पर्टिकुलर एनोटेशन इन योर एप्लीकेशन डॉट जावा ऑफ एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे के बारे में बात कर रहे हैं। चलो, एवरीबॉडी इज डन। This is step number two. Step number one is to add the dependencies. Step number two is change the annotation. Last step is to modify the resources। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज नहीं चलता है। हाँ, 8082 पोर्ट, यस, 8082 पोर्ट ये करेंगे यहाँ पे। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में नहीं करना है हमें, इसके लिए लगेगा एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल फाइल। ठीक है, सो इट विल बी सेटअप। आईपीआई गेट पे हमेशा वाईएमएल में सेटअप होता है, इसीलिए यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, स्क्रॉल डाउन करके देखो, YAML। ठीक है, बट हमने नहीं चेक किया इस टाइम पे, तो हम मैन्युअली क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे। रिसोर्सेज फोल्डर पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, न्यू फाइल। वो फाइल करेंगे, यहाँ पे फाइल लिखेंगे और फाइल में डायरेक्टली नाम लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट YML। इतना लिखिए और फिनिश कर दीजिएगा। मेरे पास वो नाम ऑलरेडी प्रेजेंट है इसलिए नहीं बना दे रहा है। एप्लीकेशन डॉट YML लिख दीजिएगा, फिनिश कर दीजिए, डन। एक बार वो फाइल बन गए तो टाइप करिए डन। ये हमारा स्टेप 3 है एपीआई गेटवे को सेटअप करने का। 4 people are done, 5 people are done, 6, great, 7, we got the number। YML और YML, दैट इज डिफरेंस बिटवीन देम। वो नेमिंग कन्वेंशन है, उसको फाइल नेम ऐसे लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं ना हम लोग। देखो, इट इज लाइक टेक्स्ट वर्सेस टेक्स्ट, TXT। इज इट सेम इम्तियाज जो मैं अभी लिख के दिया हुआ? अपन बोलते हैं टेक्स्ट, बट फाइल का नेम क्या होता है, .txt होता है ना। वैसे ही YML वो लिखते वैसे है, फाइल का नेम YML ऐसे ही होता है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। इट्स ठीक है, गुड क्वेश्चन सिंस यू आस्क इम्तियाज। बाकी लोगों को भी नहीं पता होगा, ये लोग आपने ही पूछा। ठीक है, तो YML में हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। एक सेकंड, इसको पॉपअप क्लोज करना पड़ेगा। ये जो नया YML बना है, अभी मैं सिंटैक्स बता देता हूँ, जो लोग नए हैं इसको पहली बार देख रहे हैं। तो अभी पुराने एप्लीकेशन डॉट जावा में हम लोग कैसे लिखते थे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम लोग लिखते थे, इसमें स्पेस वगैरह नहीं चलता, ये बहुत सेंसिटिव है। सर्वर
सर्वर डॉट पोर्ट 0 2 8082 ऐसे लिखते थे ना। तो ये इस तरीके का काम यहाँ पे नहीं चलता है। हम्म इस तरीके का काम यहाँ पे नहीं चलता है। इट डजेंट अलाउ टू पुट अ डॉट। अगर आपको डॉट लिखना है तो इस तरीके से लिखना है, सर्वर कोलन, जो नेक्स्ट वर्ड है उसके नीचे जब इक्वल टू साइन है तो उसी टाइम पे सामने लिखना है, नहीं तो हर हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है। हम्म? ये देखो यहाँ पे भी वो यूआरएल भी दिया है इसको, ये भी एज अ क्लाइंट एक्ट करेगा, करेक्ट। तो यूरेका डॉट क्लाइंट सर्विस यूआरएल डॉट डिफॉल्ट जोन और फिर वैल्यू था ना, तो उसको कैसे किया देखो, यूरेका क्लाइंट डिफॉल्ट सर्विस डिफॉल्ट जोन और ये। एवरीबॉडी अंडरस्टूड द सिंटैक्स ऑफ वाईएमएल फाइल? कुछ भी फर्क नहीं है। एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में कैसे करते थे वैसे ही करते हैं यहाँ पे। इसका बेनिफिट बता देता हूँ अभी मैं। इसका बेनिफिट बता देता हूँ कि क्यों कर रहे हैं। बिकॉज इसमें हम लोग राउट्स देखो, अगर अगर मैं ये हायरार्की में नहीं, जहाँ पे मुझे बहुत बड़ा हायरार्की यूज करना है, मतलब राउट्स के अंदर एक दो तीन वैल्यू फिर उसके अंदर वैल्यू, फिर तो ये हॉरिजॉन्टल में बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको सामने सामने लिखूंगा ना तो इट विल बिकम वेरी बिग, और फिर मुझे इतने तक तो डुप्लीकेट करना पड़ेगा ना। देखो ये तो इधर खत्म हो गया, दिस इज क्लोज हियर। स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम, तो स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम एपीआई गेटवे, तो फिर स्प्रिंग डॉट क्लाउड, देखो ये स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट गेटवे डॉट राउट्स, ऐसा है ना। तो ये एक बार लिखना पड़ता है इसके लिए, दूसरी बार लिखना पड़ता है इसके लिए, तीसरी बार लिखना पड़ता है इसके लिए, 4 5 6 बार ये स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट गेटवे डॉट राउट ये फोकट में रिपीट होता ना। तो इतना रिपीट ना करना है इसलिए उन्होंने यूज किया वाईएमएल फाइल। तो यू आर ट्राइंग टू सेव ऑन सम वर्ड्स, ठीक है, इसलिए वाईएमएल फाइल को यूज किया जाता है जहां पे मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टीज का यूज करना है। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल उस केस में डुप्लीकेसी क्रिएट करता है। सबको समझा क्यों वाईएमएल फाइल यूज होता है? टाइपिंग क्लियर इफ यू अंडरस्टूड? अगेन करेंगे ना, अगेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी देखो मैं आपको डेमो देता हूँ, फिर आपको और क्लियर समझेगा। हम्म? तो अगर मुझे लिखना है ये id इज इक्वल टू दिस, इफ आई वांट टू राइट इट दिस फॉर एग्जांपल, तो मुझे करना क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कमेंट के साथ। दिस इज द कमेंट। तो यहाँ पे होगा स्पेस स्प्रिंग डॉट डॉट क्लाउड डॉट गेटवे डॉट राउट्स। अभी राउट में देखो 0 1 होगा तो ऐसे लिखते हैं। राउट्स में 0 और पहला वाला राउट और आईडी और फिर उसका ऑर्डर आईडी। अगर मुझे वही सेकंड टाइम लिखना है, देखो ये 0 और उसका लोड बैलेंसर, देखो ये कितने बार लिखना पड़ेगा मुझे, स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट ये। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, ये उसका पाथ हुआ, ठीक है, ये हुआ 3, ठीक है। सो दिस इज 1 2 3। अब ये और 3 बार है ना, 1 2 3, ये 2 माइक्रो सर्विस है इसके लिए। मेरे पास इमेजिन करो 10 माइक्रो सर्विस होंगे तो ये जो रिपीट हो रहा है स्प्रिंग क्लाउड गेटवे राउट, ये जो रिपीट हो रहा है ये अननेसेसरी रिपीट हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग माई कोड डुप्लीकेसी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये जो मैंने कमेंट करके दिखा ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का फंडा है। तो somebody has invented YML context, था वो बहुत पहले से, लोग नहीं यूज कर रहे थे। तो इससे क्या होता है कि देखो ये स्प्रिंग आपने ऊपर लिखा है इधर, उसके बाद ये क्लाउड यहाँ पे एक बार लिखा है, 3 बार नहीं 6 बार रिपीट होता अगर मैंने नहीं किया। अगर मेरे पास 4 माइक्रो सर्विस है तो 12 बार रिपीट होता है ना, वो रिपीटेशन अवॉइड कर रहे हैं। क्लाउड डॉट गेटवे डॉट राउट लिख दिया, फिर उसके बाद आप लिख दो कि एक राउट 1 राउट 2 राउट 3, तो उसको वैसे लिखते हैं, ठीक है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। अंडरस्टूड? अभी समझा गया परेश? सिंपल है ना? बहुत सिंपल है यार, मतलब इससे ज्यादा सिंपल कुछ है नहीं। सिर्फ इसका प्रॉब्लम ये है भैया, ये स्पेस को जरा अलग तरीके से ट्रीट करता है। सो डू नॉट एवर गिव द स्पेस। क्या कर रहे हैं भैया?
ये लाइन तो मैंने बनाई नहीं, ये लाइन किधर से आया? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। चलो आगे जा रहे हैं हम लोग। सो दिस इज डन ना। अभी इसके अंदर वाली बात समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राउट फॉर ID1, ID1 मतलब ये ID2 है। तो यहाँ पे आपका रहेगा नाम ऑफ योर, नेम ऑफ योर एप्लीकेशन जो आपका माइक्रो सर्विस है। तो नेम कहाँ पे मिलेगा? वो नेम आपको देखो, ऑर्डर सर्विस का तो सेम टू सेम ऑर्डर सर्विस है। रेस्ट एपीआई का नाम कहाँ पे मिलेगा हमें? रेस्ट एपीआई का नाम आपको मिलेगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाएंगे उसके, और देखो यहाँ पे उसका नाम लिखा है रेस्ट एपीआई। तो ये जो नेम है यहाँ से कॉपी करेंगे हम लोग, जाएंगे एप्लीकेशन डॉट वायरमेल में और यहाँ पे डाल देंगे इधर ID इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यही आपका लोड बैलेंसर में भी होगा। आप चेक करोगे तो आपका जो लोड बैलेंसर है, हियर इट इज। और ये देखो यहाँ पे जो इधर है ना, ये URL के बाद रेस्ट हाइफन ई पे कैपिटल में ही है। तो वही कैपिटल में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोड बैलेंसर स्लैश कैपिटल में रेस्ट एपीआई। राउट, राउट उसके अंदर जो भी एपीआईज है, प्रेडिकेट मतलब ये उसका पाथ बनेगा। तो एपीआईज कैसे है उसके अंदर? कंट्रोलर, कंट्रोल के अंदर रेस्ट कंट्रोलर, कंट्रोल के अंदर प्रोडक्ट कंट्रोलर, और कुछ नहीं, डायरेक्टली प्रोडक्ट्स लिख देते हैं, प्रोडक्ट स्लैश जो भी रहेगा वो उसके अंदर जाएगा। तो ये प्रोडक्ट्स उधर कर देंगे। एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो इट विल बी प्रोडक्ट स्लैश एनीथिंग, प्रोडक्ट स्लैश एनीथिंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। ठीक है, सो आई एम जस्ट पासिंग द कोड ऑफ दिस, यू कैन डायरेक्टली कॉपी एंड यू कैन पेस्ट इट डायरेक्टली ओवर हियर। ID और प्रीफिक्स, हाँ मैंने बता दिया शायद ये अभी। ईश्वर ने क्वेश्चन पूछा था, आई जस्ट एक्सप्लेन। मैं चैट नहीं देख रहा था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया। अगर वर्जनिंग करना है तो राउट्स में ही वर्जनिंग करना है, डायरेक्टली उधर कंट्रोलर में, और कंट्रोलर से ही राउट उठा के लेके आना है। सो यहाँ पे हम लोग इधर कुछ नहीं कर सकते। जो भी एपीआई का कॉन्सेप्ट है वर्जनिंग का, वो एपीआई में करेंगे। इसमें तो सिर्फ उसका यूआरएल देना है, एंड पॉइंट। इसके बाद जो भी रहेंगे वो इधर आएगा, मतलब रेस्ट एपीआई का जो भी कॉल आएगा वो इधर आएगा। इस प्रोजेक्ट में जो भी कॉल आएगा तो वो प्रोडक्ट कंट्रोल पे आएगा, ऐसे। So once this is done, once this is done, make sure once you copy the thing, go to the boot dashboard again and make your API gateway up. ये मैं किया API gateway को up, और उसके साथ ओपन करेंगे पोस्टमैन। हाँ, ये बोल रहा है वेब फ्लक्स यूज करो सर्वर के बीच में। एक सेकेंड ना, गेटवे डॉट सर्वर डॉट वेब फ्लक्स करता हूँ मैं इसको। लास्ट टाइम भी रह गया था मेरे से। देखो, स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट गेटवे तक सब कुछ सही है, तो राउट्स के पहले उनको चाहिए। देखो कितना सिंपल हो गया, मुझे बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना पड़ रहा है। राउट के पहले उनको चाहिए सर्वर कोलन, क्या हो गया भैया, कोलन वेब फ्लक्स, अरे यूआई नीचे, वेब वेब कोलन। मैं एआई का सजेशन ले रहा हूँ इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। दैट्स इट। और फिर ये सब कुछ जाएगा उसके अंदर। आप उतना ही रखिएगा, मैं इसको एक बार चेंज करके देख रहा हूँ, लास्ट टाइम मेरा रह गया था इसलिए। जो मैंने आपको शेयर किया है वही रखना, डू नॉट चेंज इट एट ऑल एज ऑफ नाउ। दिस टैब्स आर नॉट अलाउड, वाह, ओ माय गॉड, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर मुझे बैठ बैठ के सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे चलता है ये, इसीलिए तो हमें दिक्कत है, इसीलिए तो हम उसको नहीं यूज कर, नहीं चेंज कर रहे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड
ओके, प्रेडिकेट तो उसके अंदर रहेगा, तो उसको तो स्पेस देना पड़ेगा। ये प्रेडिकेट इसके अंदर चला गया। ठीक है, मैंने मेस्ड अप कर दिया। आई विल फिक्स इट लेटर समटाइम्स। अभी हम लोग नहीं जाएंगे, इट विल वेस्ट टाइम। वंस यू आर डन, मेक श्योर आपका प्रोजेक्ट अप हो, और इस पे जाके चेक करिए एक बार। इस पे यूरेका सर्वर पे जाके चेक करिए कि आपका सर्वर अप हो गया क्या। ये मैं चेक कर रहा हूँ वहाँ पे। दिस इज माई यूरेका सर्वर। ये रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे मुझे कंट्रोल एपीआई गेटवे दिखना चाहिए। नो, यूरेका सर्वर पे एपीआई गेटवे दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर दिक्कत है। देखो, इनका दिख रहा है, परेश का। यू हैव मस्ट नॉट हैव फॉलोड द स्टेप। अभी नेक्स्ट 3 मिनट बाकी है, सेशन ऑटोमेटिकली एंड होगा, आपको पता है 10:30 को। तो आपको करना क्या है? आपको करना है टेस्ट एंड पॉइंट। आप जाओगे आपके एग्जिस्टिंग एंड पॉइंट पे, जो प्रोडक्ट के एंड पॉइंट थे। गेट प्रोडक्ट, क्या एंड पॉइंट थे? आस्क एआई नहीं, इसको मैं कर रहा हूँ बंद। आपको जाना है गेट प्रोडक्ट पे। तो ये है मेरा गेट प्रोडक्ट। उसको टेस्ट करेंगे 2 एंड पॉइंट से, ठीक है। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने किया था, 8080 पे रनिंग था कल। हम उसको चेक कर रहे हैं। तो ये 8080 पे रनिंग था, डेटाबेस से डेटा लेके आएगा और मुझे यहाँ पे दिखाएगा गेटिंग ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन। तो ये डेटाबेस से प्रोडक्ट लेके आ रहा है। देखो, फोन, लैपटॉप, माउस व्यूज दिख रहा है। बट वही देखो, मेरा जो एप्लीकेशन है जिसमें प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट है, दैट एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन 8080। तो ये करेक्ट है, रेस्ट एपीआई को 8080 पे हिट किया और आ गया। बट अभी सेम टू सेम चीज अगर मैं 8082 से एक्सेस कर पाऊं, तो इट मीन्स इंटरनली मेरा जो स्ट्रक्चर है वो चल जाएगा। अभी मैं 8080 से एक्सेस कर रहा हूं। तो होगा क्या इस केस में? तो रिक्वेस्ट जाएगा पहले एपीआई गेटवे के पास, और फिर एपीआई गेटवे से पाया जाएगा मेरे प्रोडक्ट के पास, और फिर वो रिस्पॉन्स यहां से जाएगा। तो दिस फ्लो विल गेट एक्टिवेटेड एज सुन एज आई एम एबल टू सक्सेसफुली टेस्ट दिस। ठीक है। सो आप एक बार आपके इधर ट्राई करना, देखो मुझे डेटा मिल गया। सो इट मीन्स इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, आई एम एबल टू हिट। अभी आप सोचोगे यार, 8080 लोकल से दिख रहा है और 8082 से भी हो रहा है, तो क्या फायदा है? तो एक्चुअली प्रोडक्शन पे होता है सिर्फ 8082 से ही, जो एपीआई गेटवे है उससे ही। लोकल से कभी नहीं होता है ना। सो दीज अदर माइक्रो सर्विसेज आर ऑलवेज हिडन, दीज आर ऑलवेज नॉट एक्सेसिबल। ठीक है। एक बार टेस्ट करो और मुझे बताओ कि आपका दिख रहा है क्या। आर यू एबल टू एक्सेस इट विथ अदर? यस, इम्तियाज का भी माइक्रो सर्विस अप है। गो टू द पोस्टमैन, टेस्ट इट, लेट मी नो। Go to the postman. Why getting error? It's not showing. Why getting error? It's not showing. मेरे को समझा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। एक बार चेक करो कि लोकल होस्ट 8080 से कल जो हमने एंड पॉइंट बनाए थे, ये एक्सेसिबल हो रहे हैं क्या। दिस टेस्टेड इन द पोस्टमैन विथ 8082, जो माइक्रो सर्विस का एंड पॉइंट है। राजीव जी, एरर शेयर करेंगे, मीटिंग खत्म हो जाएगा, आपका एरर ग्रुप में डालिएगा। यू आर गेटिंग रिलेटेड वेबसाइट। नहीं नहीं, वो एरर नहीं आ रहा था। तो आई वाज जस्ट मॉडिफाइंग समथिंग। वो